ઓકે રે તને રાઇટ્સ આપી દીધા છે, તારું રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, તારી સ્ક્રીન ઉપર જ આવશે. મેમ મને એવું પૂછે છે, પ્લીઝ આસ્ક હોસ્ટ ટુ ગિવ યુ પરમિશન ટુ રેકોર્ડ. ઓકે, તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ કે મારે અહીંયાથી રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે દીકરા. તને મળી જશે, બંધ થશે ને એટલે તને મળી, ચિંતા ના કરીશ. તો વિડિયો ઓન કરી દે. ઓકે મેમ. ઓકે સો એક જ મિનિટ મારે સેટિંગ માંથી ચાલુ કરવું પડશે. ઓકે સ્ટાર્ટ કરું મેમ. એવરીવન નોઝ કે આપણે આજે શું શીખવા જઈ રહ્યા છે, રાઈટ? કે ઈ કોમર્સ ડેટા સ્ટોરેજ. પહેલા તમને આ ડેફિનેશન જે હતી એનું ઇન્ટ્રોડક્શન મળી ગયું છે, ઓલરેડી મળી ગયું છે, રાઈટ? ઓકે, તો આજે આપણે એ સિસ્ટમ પર વર્ક કરતા પહેલા કે તમે મતલબ બેઝિકલી તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો, તો એની પહેલા આપણે એ સિસ્ટમને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જઈશું, કેવી રીતે એનો ડેટા ફ્લો થશે, એ સિસ્ટમને જાણવા માટે એની અંદર કેટલા મોડ્યુલ છે, શું એક્ટિવિટી થઈ રહી છે. મેમ ઇફ પોસિબલ કોકટેલ લેંગ્વેજ રાખજો ને પ્લીઝ, હિન્દી ગુજરાતી. સૌમ્યા નોઝ હિન્દી વેરી વેલ, ધેટ્સ વાય. ओके नो प्रॉब्लम मैम. या सी तो आज हम ई कॉमर्स डेटा स्टोरेज के लिए मतलब इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, ठीक है? पर किस तरह की इंफॉर्मेशन? तो जैसे हम आप रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो लाइक पाइथन लैंग्वेज में, तो सबसे पहले आप पाइथन लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप डेटा तो आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ डेटा मूव करना है, किसी के पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. तो आज हम पहले तो ये ई कॉमर्स डेटा स्टोरेज है. सी मैं किसी को भी मतलब आप सब नोन हो ये सिस्टम से, तो आज ऐसे हम मीटिंग कर रहे हैं, नॉट अ लेक्चर, नॉट मतलब लाइक आपको भी मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, राइट? क्योंकि तो ही हेल्दी डिस्कशन होगा, तो ही आपको इंटरेस्ट होगा. नहीं तो क्या होगा, लेक्चर फिनिश होगा, मैम लेक्चर फिनिश, और आप जाके सो जाओगे क्योंकि 2 दिन तो आप फेस्टिवल में थे. मैं भी थी, मेरा भी आवाज ऐसा है, मैंने भी बहुत एंजॉय किया है, बट आज थोड़ा प्रोडक्टिव सीखते हैं, ठीक है? ओके फाइन. तो हमारी आज की बेसिकली ई कॉमर्स स्टोरेज क्या है, क्या है ई कॉमर्स स्टोरेज? कोई आप मुझे एक्सप्लेन करेगा कि आपको जैसे समझाया है तो बेसिकली ये क्या है? करण મેમ નહીં ખબર, ઈ કોમર્સ સ્ટોરેજ માં પહેલી વાર સાંભળ્યું છે એમ તો, મને ઓકે એટલો ખબર નથી બહુ. ઓકે ફાઇન, ખબર નથી પણ તમને સમજાયું તો ખરા પેલા ઈ કોમર્સ માં જ્યારે તમે મતલબ પ્રોજેક્ટની ડેફિનેશન સમજ્યા હતા? મને આમ યાદ નહીં, આમ જસ્ટ ઉઠ્યો છું ને એટલે આમ. ઓકે ઓકે, એની અધર? સી મને તમારા જોડેથી એટલે જવાબ જોઈએ બેટા કે હું તમને પ્રોપરલી સમજાઈ શકું. મેમ ઈ કોમર્સ એટલે તો બેસિક બિઝનેસ ને. યસ, બેઝિક બિઝનેસ બિઝનેસ રિલેટેડ ડેટા સ્ટોરેજ નું. મને ફોર એક્ઝામ્પલ તો આપો કે ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ કેટલી છે અત્યારે રિયલ લાઈફમાં? મેમ એમેઝોન ઈબે સૌથી મોટી ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ છે અત્યારના. એક્ઝેક્ટલી. તો એની અંદર મેઇન વસ્તુ શું છે? એની અંદર તો બહુ જ બધા મોડ્યુલ છે. આપણી આ સિસ્ટમ બહુ જ નાની છે, તો એને પહેલા આપણે બ્રોડ કરવાની છે. મતલબ લાઈક અત્યારે તો સમજવાનું છે બેઝિક, પછી આપણે એને ઇલોબોરેટ કરીશું અને પછી આપણે એને એક એક મોડ્યુલ સમજીશું, રાઈટ? તો બેઝિક આ જે ઈ કોમર્સ ડેટા સ્ટોરેજ સિસ્ટમ છે એની અંદર તમારો ડેટા જે સ્ટોર થાય છે, પણ કયો ડેટા? વેન્ડર પાસે કોઈક ડેટા છે અને એ વેન્ડર ડેટાને તમને વેન્ડર પાસે ડેટા છે, લાઈક વેન્ડર પાસે નંબર ઓફ આઇટમ્સ છે જે ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ પર રજીસ્ટર્ડ છે અને એની આઇટમને શો કરે છે, રાઈટ? तो ये शो કર્યા પછી शो करे छे, वो शो करने के बाद क्या कर रहे हैं कि आपको दिखता है कि जैसे आप कस्टमर हो, आपके उसके अंदर आपका अकाउंट है, तो आपको वो डेटा दिखता है और वो जितनी भी आइटम आपको शो करता है उसमें से आपको कोई चीज ऑनलाइन शॉप करनी हो तो आप वो आइटम को सिलेक्ट करते हो. उसके बाद क्या होता है, वो आइटम सिलेक्ट होने के बाद प्रोसेस होती है. जब आपका एक कस्टमर आईडी पर्टिकुलर होता है, वो कस्टमर आईडी में क्या होता है, तो वेंडर जो एक ही चीज
अमेजोन पर एक ही चीज बहुत सारे वेंडर मतलब सेल करते हैं, तो आप किस वेंडर के साथ से परचेस करते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हमको प्राइस सेलिंग में डिस्काउंट कहाँ मिलता है, कहाँ अच्छी मतलब क्वालिटी मिलती है, डिस्क्रिप्शन अच्छा मिलता है, हमारा रिव्यू अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीज हम पढ़ के ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज किसकी है, कस्टमर की, और कस्टमर वो आइटम चूज करता है, और वो वेरीफाई होने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस होता है, और प्लेस होने के बाद आपका क्या होता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होता है, पेमेंट की बात आती है कि भाई पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये सारी जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, दैट इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स डेटा स्टोरेज, राइट, डेटा स्टोरेज सिस्टम ऐसी होती है। तो बेसिकली अवर टुडेज टॉपिक इज सी ई कॉमर्स डेटा स्टोरेज, एंड दिस इज माय आउटलाइन, दिस इज आवर आउटलाइन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट कि हमारी सिस्टम क्या करती है, उसमें कितने मॉड्यूल्स है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल कि ये सिस्टम है तो उसमें कौन सा डेटा मॉडल यूज होगा, क्या होगा, कितने मॉड्यूल वर्क करेंगे, डेटा फ्लो कहाँ से होगा, राइट, और उसके बाद फ्लो चार्ट या डायग्राम, एंड देन डेटा फ्लो डायग्राम। तो आज हम इतने टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन में, राइट। तो बेसिकली मैंने एब्स्ट्रैक्ट तो आपको जब इंट्रोडक्शन दिया तभी बता दिया, पर एट इंट्रोडक्शन में जस्ट वेट, see this is our abstract. What is abstract? Then see, in this our system customer and vendor along with the different products यहाँ पे है, that means what, our items, वो items available है परचेसिंग के लिए, और वो परचेस कौन करेगा, ऑर्डर प्लेस कौन करेगा, कस्टमर करेगा, राइट। और कस्टमर आइटम करेगा प्लेस, पर उसके लिए सी आइटम तो उसने प्लेस कर दी, बट दैट टाइम वेंडर के पास क्वांटिटी नहीं है, या फिर उसको ज्यादा प्राइस लग रही है, या फिर कम प्राइस में वो लॉस में जा रहा है, दैट टाइम वेंडर का क्या काम होता है, वेंडर बेसिकली ऐड अ न्यू आइटम्स और मैनेज आइटम्स विद द डिस्क्रिप्शन और प्राइस, लाइक उसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, ये कलर है, इतने रिव्यू मिले हैं, ये क्वालिटी है, ये यूज किया है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में वो सब चीजें ऐड होती है, प्राइस में डिस्काउंट होता है कि 5% ऑफ, 10% ऑफ, दैट इज ऑल अबाउट ऑफरिंग और प्राइस, राइट। तो मैंने वेंडर क्या कर रहा है, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें दो बेसिक मॉड्यूल है हमारे, कौन कौन से, एक है कस्टमर एंड दूसरा है वेंडर, ठीक है। आइटम भी है, ऑर्डर भी है मॉड्यूल्स में, बट कस्टमर एंड वेंडर दैट इज कम्युनिकेट विथ ऑर्डर्स और आइटम, दोनों एक मतलब ये मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो कस्टमर एंड वेंडर क्या कर रहा है, आइटम और ऑर्डर के साथ जो मॉड्यूल है हमारे उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपकी जितनी डेफिनेशन सर ने, मतलब जो भी सर थे आपको प्रेजेंटेशन जिसने दिया, उन्होंने जो समझाई उसके हिसाब से मैंने आज मेरा प्रेजेंटेशन रेडी किया है, राइट। पर हम कौन कौन सी चीज ऐड करेंगे, क्या नया फीचर आएगा, क्या रह जाता है, आपको सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो होगा आपको पता, तो ही आप परफेक्ट प्रोजेक्ट आपका कोडिंग आप कर सकोगे। क्योंकि आप प्रोजेक्ट करने बैठोगे और रजिस्ट्रेशन पेज खोलोगे, उसके अंदर सारी रजिस्ट्रेशन फील्ड आ जाएगी, पर लॉगिन पेज के अंदर लॉगिन और पासवर्ड ही नहीं आएगा, वो ही नहीं आएगा तो क्या करोगे, राइट। तो वो बेसिकली समझना जरूरी है कि वहां कहाँ से फ्लो चालू होता है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है मॉड्यूल्स, दिस इज 4 मॉड्यूल्स। कस्टमर है, क्यों मॉड्यूल्स मैंने 4 लिखे हैं वो बाद में बताती हूँ, पहले कस्टमर, वेंडर, ऑर्डर एंड आइटम, दिस इज 4 मॉड्यूल। से आप सब नोट डाउन इसलिए करना क्योंकि कोई चीज मेरे से भी रह गई हो तो हम डिस्कशन में डालेंगे कि हम ये यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम, फ्लो चार्ट सब ऐड किया है, आपका भी मुझे रिव्यू चाहिए, कहाँ कुछ ऐड करना बाकी है, राइट। और मुझे शायद ये मैंने जो पीडीएफ मतलब ये प्रेजेंटेशन शेयर किया है उसमें जो जो मैंने हैंड रिटन जो बनाया है उसके पेजेस के फोटोज डाले हैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं डायग्राम सिस्टम में बना सकूं, राइट। पर आपको यहाँ पे पता चलेगा काफी स्टूडेंट ऐसे हैं
कि जिसको ईआर डायग्राम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, उसके लिए मैंने सिंबल्स और सब भी प्रेजेंटेशन में ऐड किया है, तो हम वो पढ़ेंगे। मैम ये मॉड्यूल्स PPT इसलिए, शेयर कर सकते हैं क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? सॉरी कैन यू शेयर दिस PPT इन द व्हाट्सएप ग्रुप? आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा है? मैम दिख रहा है बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। या श्योर, बट आफ्टर लेक्चर आई कैन, हाँ हाँ आफ्टर लेक्चर श्योर। ठीक है ना? या श्योर, ओके। सी, कस्टमर, वेंडर, ऑर्डर एंड आइटम। बेसिकली आप मुझे बताओ, कस्टमर और वेंडर का काम मैंने आपको बता दिया, पर कस्टमर ऑर्डर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और वेंडर आइटम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन सुना था उस दिन, राइट? तो मुझे वो आपकी तरफ से चाहिए कि कस्टमर क्या कर रहा है, वेंडर क्या कर रहा है। आपके पास पीडीएफ है ना मैम? इन लोगों के पास पीडीएफ है, राइट? ओके ओके, देन आप उसमें से एक डायग्राम आपको दिया है, क्लास डायग्राम मानो, या फिर कुछ शेयर किया आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फर्स्ट नंबर पे, तो आप उसके अंदर से मुझे बता सकते हो किसका किसके साथ रिलेशन है। उसके बाद मैं जाऊंगी डेटा मॉडल के ऊपर, पर उसके पहले मुझे ये चाहिए आपकी तरफ से, कोई बताएगा मुझे? स्टूडेंट, देखो मुझे ये लग रहा है कल उत्तरायण के बाद आप सब सो रहे हो और मैं अकेली बोल रही हूँ, तो ऐसे मत करना। हाँ, ये एक्चुअली मैं मैम को ऐसे बोल रही थी कि फेस टू फेस रखते हैं, पर ये सिचुएशन आपको पता है, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल, कहीं भी ये पॉसिबल है ही नहीं अभी। तो इसके ये हेल्दी बनाने के लिए आपको मुझे मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। विवान? Yes, ma'am. So basically, customer, ma'am, order and item સાથે will be related in such a way that customer can place multiple orders. Like one customer can have many orders, Yes, good. and one customer can like order different items as well. So Yes. customer See, to order and customer to item will be one to many. yes, one to many, because एक कस्टमर है और उसके साथ नंबर ऑफ आइटम्स जुड़ी हुई है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो दे सकता है, राइट? For और वेंडर specific क्या items. करेगा? बेसिकली And वेंडर क्या करेगा? vendor will be adding the items and vendor will also be processing the orders. Yes, So we can basically, say that vendor is published new item, all time new item, manage item, right? Insert नई आइटम ऐड करता है, या फिर नई आइटम उसके ऊपर वो मतलब बहुत सारा उसके पास स्टॉक बढ़ गया है तो वो डिस्काउंट देगा, तो वो डिस्काउंट पॉलिसी रखेगा, राइट? तो ये सब काम किसका है? वेंडर का। और ऑर्डर में क्या होगा? ऑर्डर मेंटेन होगा, जो कस्टमर ऑर्डर करेगा जो आइटम, राइट? और आइटम में क्या होगा? आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स कस्टमर सॉरी वेंडर आईडी के साथ मैच होगी, क्योंकि एक आइटम है वो बहुत सारा वेंडर मतलब सेल कर रहा है, बहुत सारे वेंडर सेल कर रहे हैं एट अ वन टाइम। तो आप वो आइटम नंबर के साथ वेंडर आईडी पे मैच होगी, क्या कैसे होगी वो सब आपको फ्लो चार्ट या फिर ईआर डायग्राम में पता चलेगा, ठीक है? ओके, वी आर मूविंग ऑन डेटा मॉडल। What is data model? See, basically कंपनी में जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट कोई कंपनी बनाती है, तो अभी रिसेंटली अजाइल मेथोडोलॉजी यूज होती है। अभी अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा मॉडल यूज करना है? जैसे मान लो कि कोई कंपनी है और उसके साथ जो उसका क्लाइंट है वो एक ही बार में मीटिंग करके हमें सारा डेटा दे देता है, एक ही बार में, ठीक है? तो और एट दैट टाइम वी आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। सी, आपको ये फिगर में जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना कि टेस्टिंग, प्लान, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डेप्लॉय, रिव्यू, ये सारी चीजें होती है हर एक डेटा मॉडल में यही चीजें होगी, पर कब होगी? जब आपको पता चलेगा कि हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं। तो मॉडल में ये है कि अजाइल मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करती हूँ, पर उसके जैसा एक और है, वो है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल।
उसमें हम क्या करते हैं, तो सारे जो मॉड्यूल है, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो फर्स्ट पार्ट है मेरा प्लान, जो आपको फिगर में दिख रहा है प्लानिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जैसे अब मेरी कंपनी है और आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं आपके साथ डिस्कशन करके कि सर आपको क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए, ये पेज में क्या चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। वो रिक्वायरमेंट मिल जाती है, उसके बाद प्रोजेक्ट हेड डिसाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट में कौन कौन सा काम करेगा। तो मॉड्यूल में वो डिवाइड हो जाता है। मॉड्यूल में डिवाइड होने के बाद उनको पता चलता है कि डिजाइन पार्ट में मुझे सर ने या फिर मेरे क्लाइंट ने ये एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके पास मुझे फिर से मीटिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, मतलब कोई एक स्टेज से, कोई एक मॉड्यूल से हम वापिस जाते हैं। तो जो वापिस जाते हैं ना, वो वापिस जाने की प्रोसेस, जैसे मैं डिजाइनिंग में हूँ और डिजाइन में से मैं वापिस से मैं प्लानिंग में गई, और तो उसको बोलते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। कोई भी स्टेज से, बेसिकली जितने भी स्टेज है, प्लानिंग है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डेप्लॉय, रिव्यू, टेस्टिंग लास्ट में आता है। पर इतने सारे मॉड्यूल्स में, सॉरी इतने सारे स्टेजेस में से हम जब वापिस आके फिर से वो स्टेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इटरेटिव प्रोसेस। तो अजाइल मेथोडोलॉजी, रिसेंट एरा में सारी कंपनीज अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करती है। कैसे, क्यों करती है? मैंने अभी जस्ट आपको जैसे डिस्कस किया ना, उसके पहले मैंने मेरे भाई से डिस्कस किया जो यहाँ पे जॉब करता है। तो उसने बोला कि हर एक कंपनी क्या करती है अभी, 15 to 20 डेज का प्रोसेसिंग टाइम रखती है। तो 15 to 20 डेज में आपने जितना वर्क कर लिया, उसके बाद वही प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, कि कोई प्लानिंग में रह तो नहीं जाता, कोई पॉइंट डिजाइनिंग में कोई छूट तो नहीं जाता, राइट? तो उन लोगों को प्रोजेक्ट हेड ने एक डेडलाइन दी हुई है, 10 to 15 डेज। हर एक कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है, हर एक कंपनी अपने स्टाफ के हिसाब से डेडलाइन डिसाइड करती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो हम जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हमको कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है। तो ये मेथोडोलॉजी यूज करने के बाद आपको एक टाइम लिमिट मिलता है, क्योंकि मैम ने आपको बोला कि प्रोजेक्ट हमें 20 डेज में प्रिपेयर करना है, पर 5 डेज के बाद आपको पता चला कि मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आपको मैम के साथ फिर से डिस्कशन करना पड़ेगा ना वो चीज के लिए। तो आप वो स्टेज से वापस आ गए। पर आपका मैम ने तो ऐसे बोला था कि मुझे 20 डेज में फिनिश करना है, पर वो जो कट, मतलब आप बोला था कि फर्स्ट 5 डेज में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि आपके पास कौन सी चीज नहीं है, तो मैं प्रोवाइड करूंगी या प्रोवाइड करवाऊंगी, राइट? तो एट दैट टाइम वो जो कंपनी होती है, वो एक टाइम लिमिट डिसाइड करती है। वो टाइम लिमिट हर एक कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होता है, ठीक है? तो अजाइल मॉड्यूल में अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है अभी मैं बताती हूँ। पहले प्लानिंग होता है और प्लानिंग के बाद डिजाइन होता है। मतलब प्लानिंग होने के बाद एक छोटे छोटे मॉड्यूल में सब काम डिवाइड हो जाते हैं, और वो डिवाइड होने के बाद लाइक बोलते हैं ना कि पार्ट में डिवाइड करके फिर वो आपने अपना डिजाइनिंग कर लिया, किसी ने अपना कोडिंग कर लिया, किसी ने अपना टेस्टिंग कब होगा? कोडिंग और डिजाइनिंग मिलने के बाद। पर डिजाइनिंग में भी मॉड्यूल्स होते हैं कि भाई ये वेंडर का पार्ट आप डिजाइन करोगे, कस्टमर का पार्ट ये डिजाइन करेगा। तो अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग लोग डिजाइन करते हैं। तो जो मॉड्यूल में जो डिवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। क्यों? छोटे छोटे मॉड्यूल में जब हम डिवाइड कर देते हैं काम को, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, वो सारे पेजेस मर्ज करने हैं, और मर्ज करके हमको आगे का काम करना है। तो जो हम मेन काम को डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स में, उसको बोलते हैं हम मेथोडोलॉजीज, लाइक अजाइल मेथोडोलॉजी, राइट? तो ये जो मॉडल है, हम हर एक कंपनी में अभी ये यूज होता है। और उसमें भी ये अजाइल मेथोडोलॉजी है, उसमें भी जो हम डेडलाइन की मैं जो बात कर रही हूँ, उसमें यूज होता है इटरेटिव पार्ट। जब आपको वापस जाने का मिलता है, मतलब कोई एक स्टेज से आप वापस जा सकते हो और आपकी क्वेरी डिस्कस करके आप फिर से वो चीज बना सकते हो। ओके, तो बेसिकली मैंने बोला कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। तो वाटरफॉल मॉडल आप सबको पता चल गया कि एक ही बार डिस्कस करते हैं और सारे स्टेज से हम पास होके टेस्ट करके डेप्लॉय करके दे देते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल क्यों यूज होता है और कब यूज होता है? जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल है
मतलब बहुत शॉर्ट प्रोजेक्ट है और उसका बजट कम है। हम एक ही बार में उसका सारी इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे। आप लोगों को ये चीज ऐसा लगेगा कि मैम ये बजट की ये सब क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जब लाइव में कंपनी में जाओगे ना तो आपको भी ये चीज वहां पे पता चलेगी कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे पॉलिसी होती है, कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, तो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इसका ही एक पार्ट है, इटरेटिव प्रोसेस अजाइल मेथोडोलॉजी का ही एक पार्ट है। पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी सारी कंपनी अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करती है। कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा ये डेटा मॉडल में तो आप पूछ सकते हो। सी, जो मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है, मतलब ये जो दिखाया है वो है डिजाइनिंग के बाद जो रिव्यू होता है, रिव्यू में कोई आता है तो वो लॉन्च नहीं हो जाएगा, फिर से वो प्रोसेस चालू रहेगी और उसके बाद फाइनल डिस्कशन के बाद ही लॉन्च होगा, डेप्लॉय होगा, राइट। डेप्लॉय करने के बाद लॉन्च करके आपको जो आपके क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट को ट्रेनिंग देनी होती है कि ये ऐसे यूज करना है सॉफ्टवेयर, ये करना है आपको, राइट। तो आप मुझे ये डेटा मॉडल के अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर हम मैं डायग्राम्स में जाऊंगी। સ્ટુડન્ટ જાગો છો ને બધા? મારે થોડી થોડી વારે આવું પૂછવું પડશે આજે, કેમ કે પેલું કાલે 14-15 ઉત્તરાયણ ગઈ ને એટલે. ઓકે ફાઇન, નો ક્વેશ્ચન? No, શ્યોર? ma'am. Okay, fine. Now we are moving on flow chart, system flow chart. जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरे साथ, एक्चुअली मैंने एक लेक्चर लिया था वहां पे आके, तो काफी सारे स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन किया होगा तब, तो आपको पता चला होगा कि मैंने वहां पे बोर्ड पे समझाया था। पर जिसको नहीं पता है वो स्क्रीन पे देख के देख सकता है। पहले तो फ्लो चार्ट क्या है वो मैं समझा सकती हूँ, आप मतलब समझा देती हूँ आपको। पहले आपकी सिस्टम का जो फ्लो है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, क्योंकि आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ फिनिश होगा, क्योंकि आप वेंडर में गए और उसके बाद आपको पता नहीं चला और आप कस्टमर का मॉड्यूल क्रिएट करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बाइफर्गेशन मिलना चाहिए प्रॉपर। तो वो कब मिलेगा? जब आपको पता चलेगा कि मेरी सिस्टम का फ्लो कहाँ से कहाँ जाता है, तभी आप समझ पाओगे। सी, फर्स्ट जो सिंबल दिख रहा है आपको वो हमारी सिस्टम का स्टार्टिंग और एंडिंग है, राइट। उसके बाद जो एरो दिख रहा है वो हमें कनेक्शन दिखाता है, लाइक दो एंटिटी, दो सिंबल्स के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो फॉरवर्डिंग एरो है। तो हमें कनेक्शन दिख रहा है कि फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया है। देखो जब मैं मेरा डायग्राम बताऊंगी आपको, एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपका मुझे आपकी तरफ से सजेशन मिलना चाहिए, मैम यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि मैं चेंज करूंगी और आपके साथ फिर से शेयर करूंगी, तो मुझे आपकी तरफ से मिलना चाहिए इनपुट, ठीक है। थर्ड जो सिंबल है दैट इज इनपुट और आउटपुट। जब हमें सिस्टम से कोई इनपुट आउटपुट मिलता है तो हम ये सिंबल का यूज करते हैं। कोई प्रोसेस होती है, कोई एक्टिविटी दिखाना है तो फोर्थ नंबर का जो है रेक्टेंगल उसका यूज करते हैं। और कभी डिसीजन लेना है, कोई लाइक यस है नो है, कोई डिसीजन लेना है फॉल्स ट्रू, तब ये डायमंड का सिंबल यूज करते हैं हम। और फ्लो चार्ट क्या है मैंने आपको समझा दिया, राइट। तो वी आर मूविंग ऑन आवर फ्लो चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट। सी, दिस इज माय सिस्टम, आवर सिस्टम फ्लो चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है, दिख रहा है सबको, क्लियर है? ओके, सॉरी हाँ, मैंने एक्चुअली ये बनाने में बहुत टाइम लगता है और मैं भी थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, तो मैंने मेरी नोटबुक में ही आपको ये शेयर किया है, नोटबुक में से ही, ठीक है फाइन। पहले ये मैंने, देखो मैंने कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ छोड़ा है, आपको मैं टाइम दूंगी, आप ड्रॉ करोगे, पर हम जब ड्रॉ करेंगे ना तब अपडेट के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अपडेट के साथ मतलब मैंने कुछ कुछ छोड़ा है कि आपको भी मुझे पूछना है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं या क्यों ये ना लिखूं, क्यों लिखा है, वो सब मैं पूछूंगी, ठीक है। ओके, पहले मेरी सिस्टम स्टार्ट होती है, पर मैंने डायमंड में फर्स्ट लिखा है रजिस्टर्ड, बट हु रजिस्टर्ड? रजिस्टर कौन है? Ma'am, both.
या बोथ, इट इज मीन्स रजिस्टर्ड है, पर कौन रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद आता है यस रजिस्टर्ड हो तो यस, उसके बाद आता है अब इज अ वेंडर, वेंडर भी अलग है और मेरा कस्टमर भी अलग है, पर मेरी सिस्टम एक है, राइट। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, सुन लो आप मेरी बात पहले, मतलब ये हम इसको छोड़ देते हैं, मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। बैंक की वेबसाइट देखी है आपने, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई, आप ऑनलाइन बैंक यूज करते हो तो आपको जो दिखता है ना, दैट इज योर व्यू, कि आप कस्टमर हो, बैंक के क्लाइंट हो, तो उसी के तरीके से आपको व्यू मिलेगा, पहला पेज आपको उसी तरीके से दिखेगा। पर जैसे उसका स्टाफ एक्सेस करेगा तो उसको स्क्रीन अलग दिखेगी, तो वहां पे वेरीफाई हो जाता है कॉर्पोरेट है या फिर क्लाइंट लॉगिन है, क्या है। तो हमें ये बताना है कि इज अ वेंडर, जो वेंडर है तो यस में चला जाएगा, और वेंडर नहीं है तो फिर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास इज अ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर भी नहीं है, रजिस्टर करवा दिया और उसको कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है या कुछ करना है, मतलब उसको नहीं पता चल रहा है क्या है, तो वो कस्टमर भी नहीं है, तो क्या करेगा। आपको एक ही स्क्रीन में मैंने बताने के लिए ये लिखा है कि आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हो ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो मैं कस्टमर हूं, मैं वेंडर हूं, ऐसे, राइट। तो मैंने दोनों चीज एक कर दी है आपके लिए, आप अलग अलग भी बता सकते हो। पहले मैंने जो यहाँ पे रजिस्टर लिखा है, तो रजिस्टर में से भी आप यस में जाओगे तो वेंडर मिलेगा, नो में जाओगे तो मैम यस। हाँ ओके, डन डन डन, प्लीज कंटिन्यू। ઓકે, અવાજ આવે છે ને મેમ મારો? परफेक्ट આવે છે मैम। ओके, तो आप एक ही स्क्रीन में जब ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करोगे कि ये वेंडर है, तो आपको वेंडर की पूरी स्क्रीन मिलेगी, आप कस्टमर हो तो कस्टमर की स्क्रीन मिलेगी, राइट। तो दिस इज अवर, सी वेंडर है यस, देन वो प्रोडक्ट डिफाइन करेगा। क्यों प्रोडक्ट डिफाइन करेगा, एक ही वेंडर है, जैसे आप मान लो कि आपको कोई ग्रोसरी का स्टोर है, वो ऑनलाइन दिखाना है उसको वेंडर को, तो वो प्रोडक्ट को पहले डिफाइन करेगा ना, उसका कि वो कौन सी प्रोडक्ट डालना चाहता है, कौन सी कैटेगरी में डालना चाहता है, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट आप मानते हो ना उतनी इजी नहीं है, बहुत सारा उसके अंदर कैटेगरी है, उसमें आप सिलेक्शन, क्योंकि है ना बेसिकली मेरा मैं एसईओ का काम करती हूँ, तो मेरा बेसिकली यही काम है एक कंपनी में, कि नई प्रोडक्ट फाइंड करो, उसको पब्लिश करो और उसको गवर्नमेंट डिफेंस तक लेके जाओ और डिफेंस में उसका ऑर्डर लो। क्योंकि मैं जो हमारे जो कस्टमर, हमारे जो क्लाइंट है ना, वो बेसिकली क्या है, सिर्फ डिफेंस वाले हैं, डिफेंस पूरे इंडिया में जितने भी डिफेंस है ना, उसमें मैं वर्क करती हूँ। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी रहती है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट डालनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट डिफाइन। उसके बाद प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए तो मैनेज प्रोडक्ट करनी है, मैनेज प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर सकता है वो प्रोडक्ट। सी बहुत सारी एक्टिविटी आ सकती है बेटा, कि यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट लिखा है, मैनेज क्वांटिटी लिखा है, डिलीट प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि वो अभी प्रोड्यूस नहीं करना, उसको प्रोड्यूस नहीं करनी है वो प्रोडक्ट, या मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है, तो वो अपने लिस्ट में से, अपने कैटलॉग में से वो डिलीट कर देगा। और राइट, और क्या होगा कि बहुत सारे वेंडर है, तो मुझे मेरी प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे रखनी है ना, तो मुझे दूसरे वेंडर के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है तो ही मेरा कस्टमर वो चूज करेगा, क्यों, तो ही मुझे अच्छी प्रोडक्ट। देखो, कोई कोई चीज 300 में मिल रही है ना, पर हमारे क्लाइंट, हम कैसे है पता है, 299 में मिलेगी ना, तो पहले हम वो चूज करेंगे, क्योंकि वहां पे आगे 2 आ गया, राइट ना। आप सब एग्री हो ना मेरी बात से। तो वो प्रोडक्ट, हाँ, तो वो वेंडर क्या होता है, तो वेंडर वो दोनों चीज को कंपेयर करेगा और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट पब्लिश करेगा। जब वो ई कॉमर्स पे रखता है ना, उसको बोलते हैं हम पब्लिश।
मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा मेरी लैंग्वेज से कि भाई मैम ये बोल रहे थे आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, पर हमको अभी इतना ही बनाना है। उसके बाद हम पेमेंट मॉड्यूल ऐड करेंगे, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट ऐड करेंगे, अभी आप इतना ही सीखो। ओके, वो वेंडर नहीं है तो इज अ कस्टमर, यस। तो कस्टमर क्या करेगा? मेक अ ऑर्डर, सिंपल, मेक अ ऑर्डर और वेरीफाई आईडी, बिकॉज मैंने एक ही लैपटॉप से या एक ही लॉगिन से एक बार कर दिया, वो लॉग आउट नहीं किया, पर मुझे वेरीफाई आईडी करनी पड़ेगी कि मेरे अकाउंट से ही हो रहा है, कहाँ है वो। मैंने इसलिए उसका सब पार्ट नहीं लिखा है क्योंकि उसमें पहले तो अभी आपको पता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट मतलब परचेस करने जाते हो ना, तो आपको पहले पिन कोड पूछते हैं, पता है कि पिन कोड वैलिड है तो ही वो एरिया में आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी, डिलीवर होगी, राइट। तो आपको वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए पहले तो हम ये फ्लो चार्ट बनाने जाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है कि वेरीफाई पिन कोड, उसके बाद वेरीफाई आईडी, फिर पेमेंट मॉड्यूल। पर मैंने एक ऐसा बनाया है अभी, जो आपकी पीडीएफ मुझे मिली थी, मैंने रीड की, उसके हिसाब से मेक अ ऑर्डर। वो मेक अ ऑर्डर में क्या होता है ना, वो नेक्स्ट पता चलेगा। ऑर्डर होने के बाद और वेंडर ने जो अपनी प्रोडक्ट है वो पब्लिश करने के बाद वो अपनी सिस्टम से लॉग आउट हो जाएगा, या तो फिर वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेगा। पर बेसिकली एक बार जो प्रोसेस होती है ना, वो शो करता है हमारा फ्लो चार्ट। हमारी सिस्टम की बेसिक एक बार जो प्रोसेस होती है कि ऑर्डर होता है कस्टमर का और प्रोडक्ट। मैं क्यों एक बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो लूपिंग में आ जाएगा तो हमें बैक एरो फिर से बताना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट एक्टिविटी डायग्राम, नॉट अ फ्लो चार्ट। दिस इज आवर सिस्टम फ्लो चार्ट। ओके ओके। और एट द एंड मुझे एंड का सिंबल रखना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ फ्लो चार्ट। स्टार्टिंग और एंडिंग मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन दिस डायग्राम। ओके बेटा, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो बीच में। No, ma'am. नो क्वेश्चन? पूछो No, यार, ma'am. बात करो, क्योंकि हमें उससे ज्यादा मतलब सिस्टम को जानना मिलेगा आपको कि सिस्टम में क्या क्या होता है। क्योंकि मैं तो बोले ही जाऊंगी, मैंने जितना रीड किया उसके मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे जितना नॉलेज है मैं आपको बताती रहूंगी। पर आपका भी कुछ शेयर करो मेरे साथ कि मैम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि तो ही हमें मजा आएगा। लेक्चर है पर ये लेक्चर नहीं बनाना मुझे। ओके फाइन, सी दिस इज आवर फ्लो चार्ट बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं ईआर डायग्राम के ऊपर। तो ईआर डायग्राम क्या है? वेट, हाँ, ईआर डायग्राम आप सबको पता है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फ्लो चार्ट में इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था क्योंकि फ्लो चार्ट में मुझे सिस्टम का फ्लो ही बताना था। पर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपने आपकी पीडीएफ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, पर मैंने पढ़ा है। उसमें इंट्रोडक्शन में ही ऐसा लिखा है कि दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस, राइट। तो डेटाबेस आपको माई एसक्यूएल में स्टोर करवाना है या फिर आप जो भी डेटाबेस यूज करते हो उसमें आप स्टोर करवा सकते हो। पर उसके लिए पहले जरूरी है ईआर डायग्राम समझ में आना, तो ही आप अपने टेबल्स क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो ईआर डायग्राम स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑल्सो नोन एज ईआरडी डायग्राम्स। क्या करता है? एंटिटी, एंटिटी मतलब व्हाट? चलो मुझे कोई बताओ एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जो मेरे लेक्चर में प्रेजेंट है वो तो बताओ। कोई नहीं है मेरे लेक्चर में जो क्लास में प्रेजेंट था। वेट, हाँ, मुझे आपका वीडियो है ऑन है तो पता चल जाएगा, नाम से तो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, आप बता सकते हो मुझे व्हाट इज एंटिटी? स्टूडेंट्स, A single object, सिंगल, a single object like a specific item or an entity basically. So entity is basically your table name, like vendor, then vendor की सारी इंफॉर्मेशन, फिर yes, कस्टमर। तो एंटिटी क्या है? कस्टमर और वेंडर के अंदर क्या रिलेशनशिप है, कस्टमर और आइटम के साथ क्या रिलेशनशिप है,
कस्टमर और ऑर्डर के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट इज ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. क्लियर? ओके, दिस इज ऑल सिंबल्स. एंटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंटिटी के अंदर जो यहाँ पे सेकेंड सिंबल ऐसे लिखा है, रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली जो मैं आपको समझाऊं और आपको याद रखना है, तो आप ये याद रख सकते हो, एंटिटी दैट मीन्स टेबल नेम, एंड एट्रीब्यूट दैट मीन्स कॉलम नेम. कॉलम, कस्टमर आईडी, कस्टमर ईमेल आईडी, कस्टमर एड्रेस, दैट इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट. फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप शो नहीं करनी है. सी, डायग्राम का जो नाम है वो है ER डायग्राम. एंटिटी रिप्रेजेंट करनी है और एंटिटी के अंदर आपको रिलेशन बताना है. तो ये जो थर्ड नंबर का डायमंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज. ये जो है वो लिंक करता है. फोर्थ नंबर का जो लाइन दिखाया है वो लिंक करता है दो एंटिटी या फिर सेट को, एंटिटी सेट को, रिलेशनशिप सेट शो करता है. उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, लाइक वी कैन से कि हमारे पास 2 मोबाइल नंबर है, हमारा एड्रेस हम यूज करते हैं घर का भी और कॉर्पोरेट भी, मतलब क्योंकि हमें पार्सल कहीं पे भी मंगवाना है, तो दैट इज मल्टी वैल्यूड. हम 2 एड्रेस स्टोर करेंगे, पता है ना, फिर हम सिलेक्ट करते हैं कौन से एड्रेस पे हमें मंगवाना है, ऐसे. तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे शो होता है, डबल लाइन. डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मैं जो ये सिस्टम को बड़ी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, पर ये डिराइव डायग्राम मैं एग्जांपल के हिसाब से दे सकती हूँ. आपने ऐसा लिखा एज 34, तो आपकी एज कैसे डिराइव्ड हो के आई? आपकी बर्थ डेट के ऊपर से. तो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट. टोटल पार्टिसिपेशन हमें बेसिकली नहीं शो करना होता है, पर वो शो करना है तो डबल लाइन शो करते हैं. उसके बाद वीक एंटिटी. वीक एंटिटी, कोई एग्जांपल दे सकते हो वीक एंटिटी का? आपकी तरफ से ही चाहिए. वीक एंटिटी मतलब व्हाट? સ્ટુડન્ટ, મને મારી સ્ક્રીન શેર થાય છે ને તો તમારા બધાના મોઢા નહીં દેખાતા, રાઈટ? એટલે જેના દેખાય ને એને હું પૂછું છું, પણ તમે બી કમ્યુનિકેટ કરો મારી સાથે. વીક એન્ટિટી, that means what? No idea, ma'am. No idea. Clearly not defined. स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी दो होती है, पर वीक एंटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या दिया, वैसे आप मुझे वीक एंटिटी बता सकते हो, क्योंकि वीक एंटिटी और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दोनों मिक्स ना हो जाए आपसे. देखो सिंबल में वो भी डबल है और ये भी डबल है, पर उसका है कि मल्टी वैल्यूड और ये है वीक. वीक एंटिटी किसको बोलते हैं? मैम आई गेस डिपेंडेंट एंटिटी ने भी वीक एंटिटी क्या है, जे Yes, डिपेंड करे depend. बीजे एंटिटीज पर. हाँ, फॉर एग्जांपल मैम एग्जांपल याद नहीं आता है क्या थे ना. વીક એન્ટિટી એક્ઝામ્પલ સી ડિરાઇવ થઈને આવતી હોય ને કોઈ વસ્તુ, કોઈના ઉપર ડિરાઇવ થઈને આવતી હોય, લાઈક હું હવે એવું રાખું કે ફર્સ્ટ નેમ લાસ્ટ નેમ, તો ફર્સ્ટ નેમ અલગ એન્ટિટી છે અને લાસ્ટ નેમ, એટલે એન્ટિટી નહીં કહેતી હું, આ એટ્રીબ્યુટની વાત થઈ. પણ એન્ટિટીમાં હું એવું કહું કે બેંક અકાઉન્ટ, હવે બેંક અકાઉન્ટ તો છે, પણ એ બેંક અકાઉન્ટની અંદરથી આપણે કોઈ લોન લીધી છે, તો એ લોન એક એન્ટિટી જ છે આપણી, કે જે લોનની પણ ઇન્ફોર્મેશન એ પોતે સ્ટોર કરતું હશે, પણ એ કોની સાથે જોઈન છે? આપણી મેઇન એન્ટિટી સાથે, બરાબર? આપણા મેઇન અકાઉન્ટ સાથે જોઈન છે. તો એ લોન અકાઉન્ટ, તો એ લોન અકાઉન્ટ જે થયું ને એ આપણું વીક એન્ટિટીમાં આવે, કેમ કે આપણે એને મેઇન એન્ટિટી નથી બતાવતા, એ એક મેઇન અકાઉન્ટની અંદરનો એક પાર્ટ છે. જો આપણે લોન અકાઉન્ટ મળશે તો આપણા બેંકનું બેલેન્સ મળશે ના. લોન અકાઉન્ટની ઇન્ફોર્મેશન હોય
તો મને મારા મેઇન અકાઉન્ટ નું બેલેન્સ મળી શકે ના મેઇન અકાઉન્ટ નું બેલેન્સ તો મેઇન અકાઉન્ટ થી જ મળે પણ જો મેઇન અકાઉન્ટમાં હું લોન ઉપર જઉં તો મને લોનની બધી કે લોન અકાઉન્ટની બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી છે તો આપણે આ એક્ઝામ્પલ સેટ કરી શકીએ બરાબર Yes. Ma'am, it means ke let's say we have two tables. One is department table with the fields department number, name, and location. Let's say. લોકેશન Now we have another table employee with employee ID, employee name, address, salary, designation, and that the employee is from which department? That is department ID. યસ કનેક્શન Exactly. So that employee is dependent when we want data from department table. So we have to use, we have to refer that department ID from employee table, right? तो देखो व्यू बोल सकते हैं व्यू या फिर मैपिंग मैपिंग बोल सकते हैं Okay, yes. So we can say कि जो भी टेबल मास्टर टेबल को रिफर कर रहा है, that is the weak entity. एग्जैक्टली Okay, okay, done. Thank you, madam. Thank you. ओके ओके देन उसके बाद है वीक रिलेशनशिप तो वीक रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेटिव वीक रिलेशनशिप मेरे डायग्राम में ये कहीं नहीं है अभी नहीं है क्योंकि ये बेसिक है आपका हम जब उसके अंदर बहुत अंदर तक जाते हैं कि आपको आइटम की कैटेगरी भी डिफाइन करनी है कैटेगरी में भी उसका सब दिखाना है तो आइटम के साथ आइटम की कैटेगरी का क्या रिलेशन है वो दिखाना है तब ये रिलेशनशिप आता है तो मास्टर एंटिटी और वीक एंटिटी का रिलेशनशिप जब दिखाते हैं हम कि आप मैडम ने बोला कि एक डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो तभी हमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की एंटिटी मैच करना है रिलेशनशिप शो करना है एग्जैक्टली तो तब मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि कैसे रिप्रेजेंट होता है क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है उसका मैं एक पार्ट हूँ पर मेरा भी कोई है मतलब मेरी भी कोई इंफॉर्मेशन है जो उन लोगों को काम आती है तो एक टेबल बन सकता है मेरा भी तो मास्टर टेबल और उसके अंदर का एक सब पार्ट ठीक है और उसके बाद ये कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कंपोजिट एट्रीब्यूट मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको जैसे एड्रेस है एड्रेस तो उसके अंदर लगते हैं कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसे मिलता है लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 स्ट्रीट नेम एरिया नेम ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है और हम हमारा एड्रेस स्टोर करते हैं तो हम सिटी और एरिया दोनों को मिला के हम हमारा एड्रेस बना सकते हैं तो वो हमारा बन गया कंपोजिट एट्रीब्यूट्स दोनों को कंपोज करके हम बनाते हैं सिटी है या फिर हम मान लो कि लोकल मतलब एरिया और स्ट्रीट का नाम कि मतलब अहमदाबाद है कि मतलब सिटी का नाम तो ये हुआ कंपोजिट एट्रीब्यूट हम ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट नेम आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो या फिर आपका ईमेल आईडी ओपन करो ना तो ऐसे लिखा होता है कि हाय भूमि या फिर हाय पटेल राइट तो तब क्या यूज करता है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तब क्या होता है ये चीज वहां पे यूज होती है और लास्ट थिंग है कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कभी वो रिपीट नहीं होने वाला है एग्जैक्टली आई कैन से कि आपकी जो प्राइमरी की है वो ऐसे डिफाइन होती है जो लास्ट सिंबल यूज किया है अंडरलाइन वाला तो प्राइमरी की का सिंबल है ये जो वैल्यू मैंने ऐसा बोला कि C01 तो C01 दो कस्टमर का नहीं होगा एक ही कस्टमर का होगा ठीक है तब वो जो मेरा एट्रीब्यूट है वो मेरा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा कभी उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएगी तो वो शो करने के लिए ये है प्राइमरी की सी दिस इज ऑल ER diagram wait just wait या आपको दिख रहा है ना पूरी स्क्रीन पे कट नहीं हो रहा है ना किसी के अंदर साइड परफेक्ट मैम ये ER डायग्राम है हमारे सिस्टम का यस
Okay, so मैम प्लीज हमें आराम से हाँ समझाइए. हाँ हाँ एक्चुअली मैं चेक कर रही थी कि एग्जैक्टली है ना, कोई कट नहीं हो रहा है कोई पार्ट, इसके वजह से. ठीक है फाइन. सी, मेन मेरी जो एंटिटी है, जो मेरा मेन डेटाबेस जिसका आप नाम दोगे ई कॉमर्स डेटा स्टोरेज, वो मैंने बीच में रखा है. राइट. उसके बाद फर्स्ट मैं बात करूंगी तो वो आएगा वेंडर. यस मैम. एक मिनट मैम. स्टूडेंट्स, बेटा नाउ दिस इज द की पार्ट. प्लीज सारे बच्चे जाग जाइए और नोट डाउन कीजिए. ये आपका एक्चुअल स्कीमा है. सो इसे बहुत ही अच्छे से समझो प्लीज. राइट. ये प्रॉपर फ्लो दिखाएंगे और मैम आपको इजीली समझेगी आपको अब कैसे मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं हमें अलग अलग पाइथन में. और फिर ये उसे आपके हम सिस्टम का मेन पार्ट है. Yes, this is the main part or key part. So it's a request क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है. आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट मी कोडिंग में. तो प्लीज ये अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट. थैंक यू. या ओके. सी, बेसिकली आपको डायग्राम में दिख रहा है कि वेंडर लिखा है मैंने, ऑर्डर लिखा है, कस्टमर और आइटम. आप जो मेन एंटिटी ना, उसके 4 जो कॉर्नर है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये शो किया है, वेंडर, ऑर्डर, कस्टमर एंड आइटम. मैं आइटम को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज कहीं कहीं प्रोडक्ट नेम, उसके एट्रीब्यूट में प्रोडक्ट नेम आ जाता है, प्रोडक्ट आईडी आ जाता है. मैंने प्रोडक्ट आईडी में आइटम आईडी लिख सकती थी, पर आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है ना, उसमें प्रोडक्ट आईडी दिया है और उन्होंने जो टेबल का नाम दिया है ना, दैट इज कॉल्ड आइटम. तो उसकी वजह से मैंने ये डिफाइन किया कि वहां पे आइटम भी लिख सकते हो आप, टेबल का नाम, या प्रोडक्ट भी लिख सकते हो. इट इज अप टू यू. राइट. ओके फाइन. सी, वेंडर है, ऑर्डर है, कस्टमर है एंड आइटम है. दिस इज अवर टेबल्स और एंटिटी जो हमारी मेन सिस्टम के साथ जुड़ी है. वो कैसे जुड़ी है? तो मैंने डायमंड्स बनाए हैं. जब भी हमें रिलेशन का एग्जैक्ट पता ना चले कि हमारी सिस्टम कहाँ से कहाँ जुड़ी है, तो हम रिलेशन का नाम दे सकते हैं हैज और हैव. जहां मुझे पता चलेगा ना, वहां मैंने परफेक्ट नेम डाला है, क्योंकि सिस्टम के पास वेंडर है, सिस्टम के पास ऑर्डर्स है, सिस्टम के पास कस्टमर है और सिस्टम के पास आइटम है. राइट. सिस्टम के पास रिलेशनशिप का पर्टिकुलर कोई नाम होना चाहिए. वेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेंडर में जाती हूँ. वेंडर रजिस्ट्रेशन कराएगा हमारी सिस्टम के साथ, तो नंबर ऑफ वेंडर्स होंगे. उसकी वजह से उसके अंदर देखो वेंडर आईडी, और वेंडर आईडी के अंदर मैं जहां बोलू ना, वहां वो पार्ट पे फोकस करना, क्योंकि ये डायग्राम ऐसा है ना कि आप खो जाओगे कि मैडम कहाँ बोल रही है. राइट. मेरा कर्सर दिख रहा है? ओके फाइन. देखो मैं वेंडर की बात कर रही हूँ, तो वेंडर में ये है वेंडर आईडी. वेंडर आईडी यूनिक होता है, उसके लिए मैंने उसके अंदर अंडरलाइन किया है, सिंबल में मैंने दिखाया अभी. उसके बाद आता है वेंडर नेम. वेंडर ईमेल आईडी और वेंडर पासवर्ड. इतनी चीजें दी हुई है, वो वेंडर टेबल में जाएगा. ओके. उसके बाद वेंडर क्या करेगा, हम प्रोसेस वाइज जाते हैं, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली तो आइटम नहीं सिलेक्ट कर देगा, पहले वेंडर पब्लिश करेगा, उसके बाद ही कस्टमर का टर्न आएगा. ठीक है. तो वेंडर क्या करेगा, तो कीपर रिकॉर्ड, मैंने उसका रिलेशन का नाम दिया है आइटम और वेंडर के रिलेशन का नाम दिया है कीपर रिकॉर्ड. किसका रिकॉर्ड? तो पता ही आइटम का रिकॉर्ड रखेगा वो, कि मेरी 50 आइटम्स है, वो आइटम कौन कौन सी है, कैटेगरी में डिवाइड की है, या फिर उसका प्राइस, डिस्क्रिप्शन सभी उसके पास है, तो कीपर रिकॉर्ड. उसके बाद मैंने नाम दिया है, आप नाम दे सकते हो कोई और, कि वेंडर पब्लिश्ड आइटम, वो भी दे सकते हो. ठीक है. ओके. आइटम में क्या होता है, तो आइटम में बेसिकली प्रोडक्ट आईडी, जिसके नीचे मैंने प्राइमरी की बनाया है उसको. सी, प्राइमरी की फॉरेन की दोनों का कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे, तो पहले हम प्राइमरी की पढ़ ले, उसके बाद फॉरेन की. जो जिस टेबल में प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में उसको आपके मतलब आपके साथ उसको मैप करवाना है, या फिर कम्युनिकेट करना है, या फिर रिलेट करना है,
दैट टाइम पे वेंडर आईडी वहां पे फॉरेन की बन जाएगा, रेफरेंस की बन जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। सी, तो यहाँ है प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइजेस, बराबर। वेंडर आईडी, यहाँ पे है वेंडर आईडी। शायद मैंने वेंडर आईडी 2 बार लिख लिया है, एक बार इग्नोर कर देना। वेंडर आईडी है तो यहाँ पे वेंडर आईडी बन जाएगा हमारा फॉरेन की, ओके। या आइटम नाम के टेबल में कहीं भी कस्टमर का नाम नहीं आएगा, कस्टमर को ऑर्डर से रिलेटेड है, कस्टमर ऑर्डर के साथ रिलेटेड है, ऑर्डर के अंदर आइटम आएगी, कौन सी आइटम वो सिलेक्ट करता है, कितनी क्वांटिटी में सिलेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये है वेंडर आईडी। और ईमेल अवेलेबल, क्योंकि हमें कोई चीज का रिव्यू देना है या फिर कुछ करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये वेंडर ने ऐसी चीज दी है, तो हम उसको ईमेल कर सके या कांटेक्ट कर सके। क्योंकि देखो वो कांटेक्ट नंबर इसलिए नहीं छोड़ता, नहीं तो फिर वो ऑफलाइन ही नहीं बेचता अपनी प्रोडक्ट, क्यों ऑनलाइन रखता, राइट। कोई कॉल करके ही डायरेक्टली अपने घर से नहीं मंगवा लेता कि इतनी इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। पर ईमेल पे हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, हाँ सॉरी। उसके बाद आते हैं हम कस्टमर पे। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर अपना रजिस्टर कराएगा वेबसाइट के ऊपर, तब उसकी एक कस्टमर आईडी जनरेट होगी, दैट इज अवर प्राइमरी की। कस्टमर आईडी इज अ प्राइमरी की। कस्टमर ईमेल आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर पासवर्ड, क्योंकि जब भी वो लॉगिन करेगा मस्ट बी इंपॉर्टेंट आईडी एंड पासवर्ड, और कस्टमर एड्रेस। ये जो चीज मैंने जो ईआर डायग्राम बनाया है वो मैंने आपकी जो पीडीएफ है उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसके ऊपर से बनाया है। जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कस्टमर टेबल के अंदर हमें ये देना चाहिए या फिर आइटम के अंदर ये देना चाहिए, तो आप एट्रीब्यूट ऐड मुझे करवा सकते हो। मेरे पास नॉलेज है पर मुझे आपके पास से लेना है, ठीक है ना, थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि सब एक्टिव है अभी, ठीक है। चलो, कस्टमर आईडी बाद में उसका लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले रिलेशन समझ लेते हैं। कस्टमर सिलेक्ट करता है, क्या सिलेक्ट करता है, आइटम। पर वो जब आइटम सिलेक्ट करेगा ना, रिलेशन तो मैंने दिखा दिया है, सिलेक्ट करेगा ना तब रीडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, वो ऑर्डर पे हो जाएगा। तो ऑर्डर, वो आइटम सिलेक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर कोई आइटम आईडी नहीं दी है हमने, क्योंकि आपकी पीडीएफ में अवेलेबल नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि ऑर्डर के अंदर मुझे एक आइटम आईडी भी रखनी चाहिए। जो मैं वहां पे आइटम आईडी रखती या फिर कैटेगरी नेम या आइटम नेम रखती, तो मुझे कस्टमर और आइटम के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाना पड़ता। यहाँ पे नो नीड, पता चल रहा है ना। तो मेन ये ऑर्डर टेबल है, उसमें क्या है देखो, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी होता है, पर ऑर्डर आईडी एक ही होता है, एक कस्टमर का एट ए टाइम ऑर्डर आईडी एक होता है, पर उसके अंदर आइटम आईडी नंबर ऑफ होते हैं, 1 और 2 और 3 और मोर, राइट। कितनी भी एक ऑर्डर में आप 3 चीजें सिलेक्ट करते हो तो 3 आइटम आईडी होंगे। तो ऑर्डर आईडी आप सोच लेना, तो ऑर्डर टेबल में आप आइटम आईडी को फॉरेन की बना सकते हो ऑर्डर के अंदर। नोट डाउन करना, हाँ प्लीज नोट डाउन करना जो मैं बोल रही हूँ। ओके, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी वेरीफाई होगा, कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या बन गया, आपकी फॉरेन की बन गया, ठीक है। टोटल वैल्यू आपका ऑर्डर का क्या होता है, वेंडर आईडी, इसलिए क्योंकि हमने कौन से वेंडर आईडी से पता चलेगा कि वेंडर का ईमेल आईडी क्या है, वेंडर कहाँ से हमें भेज रहा है। क्योंकि आपको पता है, तो आप अमेजोन से जब आपका पार्सल निकलता है तो आपको पता चलता है हैदराबाद से निकला, दिल्ली से निकला, कहाँ से निकला, तो हमारा वेंडर कहाँ का है रजिस्टर्ड, तो वो वेंडर आईडी से हमें सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद है रिव्यू पॉइंट, आप स्टार देते हो प्रोडक्ट को, तो प्लेस करने के बाद आपको पूछा जाता है कि रिव्यू करना है ये प्रोडक्ट का, और रिसीव करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि रिसीव हो गया, आपको प्रोडक्ट कैसी लगी, तो आप वहां पे रिव्यू देते हो, तो वो ऑर्डर के अंदर वो नोट डाउन हो जाता है। एक चीज कर सकते हैं, ये जो रिव्यू पॉइंट है ना,
वो आइटम जो आइटम प्रोडक्ट्स है ना उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पर कब? क्योंकि वो चीज, वो आइटम है, वो 1 से 10 मतलब 1 से ज्यादा बिक गई हो तो हमें पता चले उसका रिव्यू क्या है, राइट? तो आइटम कोई वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल आइटम तो है, पर उसका रिव्यू पे उसके अंदर दिखना चाहिए ना कि कितने लोगों ने खरीदी। हम फेक रिव्यू भी लेते हैं किसी किसी के साथ से, कोई वेंडर होता है ना वो ऐसे बोलता है कि 10-15 वो फेक रिव्यू डलवा देता है, ठीक है? वो डलवाने के बाद क्या करता है, वो शो होता है, जब भी आइटम सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर रिव्यू शो होता है। तो आइटम टेबल के अंदर वो रिव्यू पॉइंट्स की रिव्यू जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक सजेशन है, उसके बाद हम कर सकते हैं, पर पहले ये बेसिक सिस्टम आप बना लो, उसके बाद फिर हम फ्यूचर एनहांसमेंट में, जब मैम फ्यूचर एनहांसमेंट देगी ना तब मेरा फिर से लेक्चर अरेंज करेंगे हम। ठीक है ना मैम? ओके, चलो देखो अभी नेक्स्ट है, आपको इसमें कोई डाउट है? डाउट डाउट देखो, कस्टमर क्या करता है, मेक अ ऑर्डर, तो उसके रिलेशन का नाम मैंने क्या दिया, मेक अ ऑर्डर, या फिर कस्टमर मेक ऑर्डर कर सकते हो, कस्टमर हैव या हैज ऑर्डर, कुछ भी डाल सकते हो आप, पर मैंने मेरे हिसाब से डाला है, आप रिलेशनशिप का नाम आपके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे इसलिए बताया है कि ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आइटम आईडी मेंशन नहीं थी, इसकी वजह से मुझे कस्टमर और आइटम का रिलेशनशिप बताना पड़ा कि आइटम सिलेक्ट हो रही है, नंबर ऑफ आइटम, और 3 आइटम हुए और हमारे 2 वेंडर भी हो सकते हैं और 1 वेंडर भी हो सकता है और 3 वेंडर भी हो सकते हैं। तीनों चीज हम अलग अलग वेंडर से चूज कर रहे हैं। मुझे स्कूल बैग भी चाहिए, वाटर बॉटल भी चाहिए और पेन भी चाहिए। ये प्रोजेक्ट जितना डीप में जाओगे ना उतना डीप हो सकता है, पर पहले हम बेसिक समझ लें। ओके, कोई क्वेश्चन है बेटा? एवरीवन नोस? प्लीज मुझे आंसर करो, पता चला नहीं चला? No, ma'am, no Yes, ma'am. question. ओके, No questions. नो मैम क्वेश्चन पर एक ही मुझे है। मिनट, मैम एक मिनट, Yes. बच्चा आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मैम को बताएं कि इसमें मास्टर टेबल कौन है और ट्रांजैक्शन टेबल कौन से है, प्लीज। As in, ma'am, question 5 एक बार repeat कर दो। यहाँ पे कौन से मास्टर टेबल है और कौन से मतलब डिराइव टेबल है, उसके अंदर से कोई डिराइव होके आता है, कौन से मास्टर टेबल? Vendor or customer master table. हाँ, vendor and customer will be the masters and And orders, items. मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मैंने एक नेक्स्ट स्क्रीन पे भी चली गई, तब तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैडम पूरे डायग्राम में ये स्टार और 1 क्या किया है? आपने वो तो बताया नहीं, हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया। ma'am, is that a relationship? बट यस, पर सबको नहीं पता है ना कि स्टार और 1 क्या है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप मुझे पूछो कि मैडम आपने ये रिलेशनशिप बताया, उसके बाद में 1 और ई कॉमर्स सिस्टम एक ही सिस्टम है, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर है, उसके पास बहुत सारे वेंडर है, उसके पास बहुत सारे ऑर्डर है और उसके पास बहुत सारी आइटम्स है, और एक कस्टमर के पास बहुत सारी आइटम्स है सिलेक्ट करने के लिए, पर एट अ टाइम मैं एक ही आइटम चूज करती हूँ, तो वहां पे हम 1-to-1 रिलेशनशिप भी रख सकते हैं, शो कर सकते हैं एक टाइम पे एक। आपके प्रोजेक्ट में आप क्या कर रहे हो ना, वो उससे ये डायग्राम से पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में आप क्या करने वाले हो, 1-to-1 दिखाओगे या 1-to-many दिखाओगे, क्योंकि आपको अभी एक ही चूज करना है, एक ही आइटम चूज करके दिखाना है, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं देना है, तो ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। ये डायग्राम मैंने बनाया है पर मैं कोडिंग नहीं करने वाली, तो आपका कोडिंग करने वाले हो तो आपके हिसाब से आपका डायग्राम होना चाहिए। मैं कोडिंग करने वाली हूँ तो मैं डायग्राम रिफर करूंगी, तो मैडम ने मेरा लेक्चर आज इसीलिए रखा है कि आप सब आपके कंसेप्ट के साथ क्लियर हो, उसके बाद आप कोडिंग करो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आज ही लेक्चर क्यों रखा, राइट? क्योंकि आपको डेवलपमेंट में जहाँ कोडिंग करना है उसके अंदर। तो ये 1-to-1 मैंने इसलिए दिखाया है, वेंडर के पास एक वेंडर बहुत सारी आइटम पब्लिश कर सकता है, तो मैंने एक वेंडर और आइटम, नंबर ऑफ आइटम, इसके लिए स्टार दिखाया है। 1-1 दिखाऊं तो उसका मीनिंग होता है 1-to-1, 1 स्टार दिखाऊं तो उसका मतलब होता है 1-to-many,
स्टार और 1 दिखाऊं तो वाइस वर्सा, लाइक मैनी टू 1, और स्टार मैं ये नहीं दिखा सकती, बहुत सारे कस्टमर बहुत सारी आइटम्स। हाँ, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा दिखाना है डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ओके। मैडम ने एक क्वेश्चन किया था आपका, आपने ऐसा बोला कि वेंडर और कस्टमर दोनों मास्टर एंटिटी है, ऐसा है? मुझे ये बताओ कि मास्टर एंटिटी कौन कौन सी? चलो સ્ટુડન્ટ્સ, હું અને મેડમ એકલા નથી ભણતા, તમે પણ છો. Ma'am, વેન્ડર vendor, ઓર્ડર્સ, કસ્ટમર્સ અને આઇટમ્સ. આમાં વેન્ડર અને કસ્ટમર્સ આર મેઇન આઇડેન્ટિટી અને નો ઓકે. બેટા ચારે ચાર માસ્ટર જ છે, ચારે ચાર જ પહેલા કયા? રાઈટ, ચારે ચાર માસ્ટર જ એન્ટિટી છે. તમે વિચારો, ચલો આમાંથી કોઈ એક વસ્તુ નથી, ઓર્ડર નથી, તો તમારો પ્રોજેક્ટ બનશે? તો તમે જેને રિમૂવ કરી શકતા હો ને, અને એનાથી કોઈ ફરક ના પડે ને, ધેટ ઇઝ યોર સ્લેવ એન્ટિટી. હવે તમે આની અંદર પેમેન્ટ મોડ્યુલ નથી બતાવ્યું, રાઈટ? માની લો, એક વસ્તુ માની લો કે પેમેન્ટ મોડ્યુલ નથી બતાવ્યું, પણ હું પેમેન્ટ મોડ્યુલ બતાવું છું, એટલે પેમેન્ટની એન્ટિટી બતાવું છું, તો પેમેન્ટમાં શું આવશે? કસ્ટમર આઈડી, ટોટલ વેલ્યુ, અને પેલું જે તમારું કંઈક હતું ને ઈએમઆઈ અવેલેબલ છે કે નહીં, તો એ જ્યારે પેમેન્ટ મોડ્યુલ આવે એ. પણ હું જો પેમેન્ટ મોડ્યુલને સાઈડમાં ખસેડી દઉં તો કસ્ટમર આઈડી ને એવું છે, આ ઓર્ડર અને કસ્ટમર એ બંને ઉપરથી ડિરાઈવ થઈને એક પેમેન્ટ મોડ્યુલ બને છે. તો ત્યારે એ સ્લેવ મોડ્યુલ બન્યું કે મતલબ સ્લેવ એન્ટિટી બની કહેવાય, સબ એન્ટિટી બની કહેવાય. ક્લિયર થાય છે બેટા? મેમ કરણ, આ ખબર પડે છે તને ભાઈ? હા બધા માસ્ટર છે. yes ma'am. તો મેમે કીધું પછી ખબર પડી દીકરા, તો તું જવાબ કેમ ના આપ્યો? કેમ કે કોઈના બી વગર ચાલે એવું છે જ નહીં. સૌમ્યા, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કેરફુલી કે Yes, all ma'am. are important and all are interconnected, right? So हाँ, ma'am. all are your master table. See, we don't have, see Karan, this is the half project. હા, આ બહુ જ નાનું છે હા. પાર્ટ એક. હજી આને બહુ જ એલોબરેટ કરીએ તો આપણને બહુ જ બધા ઓપ્શન્સ મળશે. બીકોઝ હું આઇટમમાં પણ આઇટમ કેટેગરી નામનું એક મોડ્યુલ મતલબ લાઈક એન્ટિટી ક્રિએટ કરી શકું છું. Exactly. So please, everyone, Pranshu, Vivan, Shrey, understand carefully. Stuti, बच्चा बहुत ध्यान आपसे, See, right? હું Because તમને this is real time just a example આપું. master table concept. Actually, आप अभी तक ट्रांजैक्शन कंसेप्ट पे आए ही नहीं हो इस प्रोजेक्ट पे, तो प्लीज समझो इसे, क्योंकि इसे एक बार बना के टच नहीं करना है, डेटाबेस से ही काम होने वाला है. Yes, this Right? is the main part. Yes. So please. सेलो कंपनी है, सेलो कंपनी क्या क्या बनाती है? वाटर बॉटल बनाती है. मैं एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा, एक मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो सेलो कंपनी है तो एक बॉल पेन बनाती है, फिर वाटर बॉटल बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ना. तो वो सेलो कंपनी भी खुद वेंडर हो सकती है, यस और नो? खुद वेंडर हो सकती है, मैम क्योंकि होलसेलर हुई ना फिर तो. सॉरी, It will be a wholesaler then in that case, right? होलसेलर, Hello, company. सेलो How can कंपनी, it be vendor सेलो because it's कंपनी, not. लिसन टू मी फर्स्ट. सी, सेलो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है, बट मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया होगा, जो डिपार्टमेंट ई कॉमर्स के साथ जुड़ा होगा. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. और सेलो कंपनी उसके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रखता है. तो कोई लोकल वेंडर है जो वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ से मतलब जो वो उसके साथ से डीलर के साथ से परचेस करेगा, और ई कॉमर्स के आपकी मतलब इस ई कॉमर्स के ऊपर उसकी आइटम रखेगा और कस्टमर को पब्लिश करेगा. तो उसके अंदर सेलो कंपनी क्या होती है? सेलो कंपनी मास्टर है कि उसके पास नंबर ऑफ वेंडर्स है. तो जब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इसके रिलेटेड नहीं बता रही हूँ, मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रही हूँ.
तो सेलो कंपनी भी एक वेंडर हो सकता है खुद, और जो छोटे छोटे वेंडर्स है वो भी एक वेंडर हो सकता है ई कॉमर्स के ऊपर। वहां पे आपको प्राइस का बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि सेलो कंपनी खुद देती है और वेंडर उसके साथ से परचेस करके आपको देता है। तो हमें जो प्रोजेक्ट समझना है और अंदर जाना है तो बहुत डीप में भी जा सकते हैं बेटा, पर पहले आप ये बेसिक बेसिक समझ लो, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि एक एक मॉड्यूल में मैं डीप में जाऊंगी ना तो मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी के लिए। तो पहले ये 4 टेबल हमारे मेन है, उसके अलावा हमें कोई समझना नहीं है। ये 4 टेबल, उसकी एट्रीब्यूट, उसका प्राइमरी की, उसकी फॉरेन की, ये सब आपको याद रखना है, तो आपको इजी रहेगा कोडिंग करने में। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Ready. Next main thing, data flow diagram, DFD of our system. હવે ફ્લો ચાર્ટ અને ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામમાં ડિફરન્સ શું છે? પહેલા તો કેમ આપણે ડેટા ફ્લો બી ભણ્યા અને કેમ આપણે ડેટા ફ્લો ભણીશું અને ફ્લો ડાયાગ્રામ ભણ્યા, રાઈટ? तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम। फ्लो चार्ट हमारी सिस्टम का फ्लो है, उसके अंदर मैंने डेटा कहां से कहां जाता है ना वो नहीं दिखाया है। कौन से टेबल से रिट्राइव होगा, कौन हमें मतलब उसका रिस्पॉन्स करेगा, कौन सा टेबल हमें देगा, वो सब चीजें मैंने नहीं बताई। जस्ट ओनली बताया सिस्टम का फ्लो। जैसे आप वेंडर पार्ट डिजाइन कर रहे हो, वेंडर पार्ट का कोडिंग कर रहे हो, तो वेंडर पार्ट में जाओ, उसके बाद सिस्टम का फर्स्ट में आ जाओ, उसके बाद कस्टमर का कोडिंग करो, और दोनों का मिला के फिर आप फ्लो कर सकते हो। सिस्टम फ्लो ऐसे होती है। डेटा फ्लो डायग्राम में हमें उसका डेटा कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से हमें रिट्राइव्ड होता है, कौन सी चीज हमें कहाँ से मिलेगी, वो सब चीजें। जैसे आप सिलेक्ट की क्वेरी सबको पता ही होगा, तो शायद मैं बता सकती हूँ कि सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हो कि सिलेक्ट मुझे करना है कि ऑर्डर आईडी कौन सा है, कब वो डिस्पैच करेगा, कुछ भी मुझे सिलेक्ट करना है टेबल से, तो मैं तब क्या करूंगी, वो पर्टिकुलर ऑर्डर वाले टेबल से फेच करवाऊंगी। तो उस टाइम पे मुझे पता चलेगा कि मेरा डेटा कहाँ से कहाँ आता है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है अ डेटा फ्लो डायग्राम मैप्स आउट अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी प्रोसेस और अ सिस्टम। फ्लो दिखाता है, डेटा का फ्लो दिखाता है सिस्टम में, ठीक है? ओके। उसके अंदर पहले मैं आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव करने के पहले मैं बता देती हूँ, लेवल्स होते हैं उसके अंदर। हमारे कितने हैं? एक वेंडर है और एक कस्टमर है। अभी मैं वेंडर और कस्टमर के ऊपर ही क्यों फोकस कर रही हूँ? क्योंकि उसके अंदर आइटम और ऑर्डर जुड़े हुए हैं, और आइटम और ऑर्डर वेंडर और कस्टमर दोनों एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे कि यहाँ से ये लाएंगे, मतलब वो क्या रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। वेंडर भी है और कस्टमर भी है। ऑर्डर और आइटम उन लोगों के ऊपर डिपेंड, तो हम वो डेटाबेस के ऊपर दिखा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आइटम खुद अपना काम करती है कुछ, वो तो सिलेक्ट कहाँ से होगी, कस्टमर के ऊपर से होगी, या फिर पब्लिश कहाँ से होगी, वेंडर करेगा तो पब्लिश होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज के अंदर हमें पहले डायग्राम लेवल 0 में, लेवल 0 डायग्राम है कंटेक्स्ट लेवल 0, मतलब कंटेक्स्ट लेवल का मीनिंग ही ये होता है कि लेवल 0। तो लेवल 0 डायग्राम में कहाँ से कहाँ डेटा फ्लो होगा, डेटाबेस के ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं, और वेंडर और कस्टमर क्या करता है वो दिखेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है डेट सी, मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा है यहाँ पे, पर रिक्वेस्ट कौन सी चीज का कर रहा है? बहुत सारी चीज। वेंडर पब्लिश भी कर रहा है, वेंडर प्राइस भी डाल रहा है, पर ये कंटेक्स्ट लेवल है, इसकी वजह से यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिखाना है। बाकी सारी चीज लेवल 1 लेवल 2 में आएगी, ठीक है? ये लेवल 1 पे ही, सॉरी लेवल 0 पे ही है। अभी आपको ये जो मेन डेटा, मैंने डेटा फ्लो डायग्राम का, चलो कोई बात नहीं, मैंने एक्चुअली सिंबल रखे हैं पर क्यों नहीं आए प्रेजेंटेशन में मुझे पता नहीं है, हम सिंबल समझ लेते हैं उसके ऊपर से ही। जो मेन सिंबल है, जो हमारी सिस्टम शो होती है राउंड में, मैंने जो लिखा है वो होता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस मतलब वहां से प्रोसेस होगी,
और ये जो एंटिटी है, मतलब जो हम एंटिटी शो करते हैं, तो वेंडर और कस्टमर, और ये जो डबल लाइन में शो किया है दैट इज अवर डेटाबेस। मैंने डेटा लिखा है, डेटाबेस डिक्लेयर कर लेना अपनी तरह से, डेटाबेस। वो डेटाबेस में भी हम बाइफरगेट करेंगे, आइटम से ऑर्डर है क्या, और हम ई कॉमर्स के ऊपर जो एक्टिविटीज है, नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उसके भी डिवीजन होगा, वो लेवल 1 में आएगा। कि लेवल 1 में अभी ये डायग्राम में हमें ये दिख रहा है कि वेंडर रिक्वेस्ट करता है ई कॉमर्स के साथ, रिक्वेस्ट क्या क्या कर सकता है, चलो वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं लेवल 1 में जाऊंगी तो आपको दिखेगा, पर आप अपनी तरीके से बताओ रिक्वेस्ट वो कौन कौन सी चीज के लिए कर सकता है। वो अपनी खुद मतलब मैं एग्जांपल पहले मैं बताती हूँ, फिर आप बताओगे। वेंडर आपका खुद का रजिस्ट्रेशन कराएगा पहले, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट ऐसी मुझे चाहिए कि कितनी कितनी एक्टिविटी वो करेगा ई कॉमर्स के ऊपर। वेंडर कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा? sign up, log in, log out, Yes. Add product, add replace products, product, Add create product, product. yes, delete, product, manage, quantity. yes, add description। पता चल गया ना आपको, इतनी सारी मतलब इतनी सारी एक्टिविटी वो कर सकता है। जैसे कस्टमर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट डालेगा तो कस्टमर अपनी मतलब खुद की सेट को वो रजिस्टर कराएगा। उसके बाद मैम वो रिक्वेस्ट डाल सकता है वो आइटम के सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट मतलब फाइंड करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा, दो प्रोडक्ट के साथ में कौन सी अच्छी है तो कंपेयर प्रोडक्ट। उसके बाद सिलेक्ट या फिर ऐड टू कार्ट, ऐसे बोल सकते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। मैं ये सब चीज बोलती हूँ ना, पब्लिश, ऐड टू कार्ट, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐड टू कार्ट बोलूंगी ना, तब आपको वेंडर नहीं आएगा दिमाग में, कस्टमर ही आएगा, क्योंकि वेंडर ऐड टू कार्ट नहीं करेगा, वेंडर तो पब्लिश करेगा और कस्टमर ऐड टू कार्ट करेगा। फिर वो आपके विश लिस्ट में बताता है और उसके बाद आप प्रोसेस करते हो फिर। राइट? क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, ये है बेसिक कंटेक्स्ट लेवल जो हर एक सिस्टम में होना ही चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है। उसके बाद हम वेंडर पार्ट को अलग करेंगे, कस्टमर पार्ट को अलग करेंगे। वेंडर का लेवल 1 में दिखाने जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी एक्टिविटी बोल दिया, लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, ऐड आइटम, सिलेक्ट आइटम, राइट? ओके, पर मैंने वो सारी आइटम्स, वो सारा सब नहीं डाला है, मैंने थोड़ी ही आइटम यहाँ पे ऐड की है प्रोसेस में। वेंडर को मैंने 1.0 से डिफाइन किया है, जस्ट वेट। ये जो ई कॉमर्स डेटा स्टोरेज है ना, वो मेरा मेन डेटाबेस है और उसका यहाँ पे नाम दिया है 0.0, मतलब वो मेन है। जब मैं वेंडर पार्ट को अलग करती हूँ और कस्टमर पार्ट को अलग करती हूँ ना, तो वहां पे वेंडर को मैं फर्स्ट नेम दिया, मतलब 1 दिया है वेंडर को, तो यहाँ पे 1 पॉइंट से उसकी एक्टिविटी डिफाइन होगी। 1.1 उसका कीपर रिकॉर्ड, कीप रिकॉर्ड के बदले आप लिख सकते हो कि रजिस्टर्ड इटसेल्फ, मतलब रजिस्टर हर और हिमसेल्फ, राइट? आप अपनी तरीके से एक्टिविटी का नाम लिख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने सब एक्टिविटी ऐड नहीं की है पेज में, तो आप कर लेना। सी डेटाबेस यहाँ पे था मेन, सिर्फ डेटाबेस, यहाँ पे था सिर्फ डेटाबेस। यहाँ पे आ गया आइटम्स, मैं पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर ही प्रोसेस कर रही हूँ, तो ये आइटम का ही है। ओके, तो कीप अ रिकॉर्ड, ऐड अ न्यू आइटम, डिलीट अ आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, मैनेज प्राइस, बहुत सारी एक्टिविटी आएगी। तो आप एक्टिविटी का नंबर दे सकते हो, 1.0, 1.1, 1.2, मतलब कंटिन्यू आप दे सकते हो। यस मैम। बेटा यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि वेंडर जो है, आपके वेंडर एंटिटी, वो डायरेक्टली लिंक है आइटम टेबल के साथ। सो आप जब भी मॉड्यूल बनाएंगे तो ध्यान रखेगा बैकएंड में आपको आइटम की ही क्वेरी फैच करनी है। आपको जो भी काम करे वो सीधा स्क्रीन पे दिख रहा है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट मॉड्यूल जो हम लाइब्रेरी बनाने वाले हैं पाइथन में। सो vendor.py इज वन फाइल, देव, अंडरस्टैंड केयरफुली। अब इसमें Yes, ma'am. पूरा डेटा, आप पूरा प्रोग्रामिंग वैसे करेंगे कि वो आइटम से ही रिफ्लेक्ट होगा। आप समझ रहे मेरी बात एवरीवन? अब मैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
data flow diagram, right? Yes, Hmm. ma'am. Yes, ma'am. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिविटीज कि आप क्या करने वाले हो, मतलब आप कौन कौन से फंक्शंस दोगे उसको एग्जैक्टली, राइट? तो ये फंक्शंस है कि वो रिकॉर्ड रखेगा। तो एक वेंडर है, समझ लो आप एक वेंडर है, उसके पास 10 या 50 या 100 मतलब आइटम्स है, तो उसका भी टेबल के साथ लिंक तो होगा ना, क्योंकि वो जो जब भी वो आइटम आईडी होगा ना, उसके बाद वेंडर आईडी होगा, तो वेंडर आईडी मैच करेगा तो वो वेंडर की आइटम है, सिंपल। इसलिए मैंने रखा है कि कीपर रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू आइटम, उसके बाद उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, पब्लिश करता है वो नई आइटम। डिलीट आइटम, क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं होता, मेंटेन करना होता है, तो वो डिलीट कर देता है। मैनेज प्राइस, बहुत स्टॉक बढ़ गया है, उसको ज्यादा बेचना है, जल्दी बेचना है, तो वो प्राइस को लेस करेगा पहले जो डाली उससे। तो ये सारी एक्टिविटी है वो आइटम के साथ वो करता है। देखो मैंने लिखा है मेंटेन आइटम्स, वो मेंटेन आइटम लिस्ट होता है, आइटम से उसको रिस्पॉन्स मिलता है, तब कीप रिकॉर्ड वो रिस्पॉन्स करेगा। तो सारी चीजें मैंने इस तरीके से डायग्राम में दिखाई है। आपको ऐसा हो तो ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, पर इसमें मैंने सारी एक्टिविटी ऐड नहीं की है, तो आपको भी आपकी तरीके से करना पड़ेगा। आप जो प्रोग्रामिंग में करने वाले हो ना, वो यहाँ पे मैंने दिखाया है, पर आपको ऐड करना है इसमें, ठीक है, एक्टिविटी। अभी आएगा कस्टमर का लेवल 1। कस्टमर का लेवल 1, मैम कस्टमर की एक्टिविटी डिफाइन करवा। મેમ એક ડાઉટ હતો, यस, હવે વેન્ડર કોઈ આઈટમ કરે છે પબ્લિશ, તો એની એ ઇમેજ તો મૂકશે ને ડિસ્ક્રિપ્ટ કરવા માટે, यस। તો મેમ એનું આપણે ડેટાબેઝમાં પાથ સેવ કરવો પડશે, કેમ કે પાયથન તો એવી ફેસિલિટી નથી આપતું કે તમે દરેક વાર રન કરો તો એ જ ઇમેજ શો કરે. यस मैम। દીકરા, એ છે ને આપણો પ્રેક્ટિકલ કોડિંગ પાર્ટ છે, રાઈટ? હવે આ ઈ કોમર્સ છે, એટલે કે ઓનલાઈન છે, એટલે એમાં તમે HTML પેજીસ, જે વેબ પેજીસ બનાવશો ને, એમાં જે મૂકશો ને એ તમારા સર્વર ઉપર ઇમેજીસ હશે, દેવ. અને સર્વરનો પાથ કેવો છે? એબ્સોલ્યુટ. એબ્સોલ્યુટ, હા. તો મેમ આમાં કેવી રીતે ફાઇલ કરી? નેમ સર્ચ કરીને સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરશે. સમજાય છે? યસ મેમ. એટલે એ વાળા ફોલ્ડરમાં તમારી ઇમેજીસ રાખવાની છે, એ સર્વર ઉપર આવી જશે, અને સર્વર ઉપર બધી ફાઇલ એક જ જગ્યાએ હોય, એક જ લાઇબ્રેરીમાં હશે, એટલે એ ઓટોમેટિકલી સર્ચ કરશે એબ્સોલ્યુટ પાથને. રિલેટિવ નહીં હોય આપણો પાથ. આપણે સિસ્ટમમાંથી કામ કરીએ તો આપણે રિલેટિવ પાથ રાખીએ છીએ, રાઈટ? તો ત્યાં આગળ, અને તમારે આ જે ઈ કોમર્સ સિસ્ટમ છે ને, એટલે આપણે અત્યારે શું બનાવીએ? સોફ્ટવેર, રાઈટ? બીકોઝ તમારા સિલેબસમાં ઈ કોમર્સ નથી. HTML, CSS, જાવાસ્ક્રિપ્ટ, jQuery, બૂટસ્ટ્રેપ, Node.js એ નથી. AngularJS એ આ સિલેબસમાં નથી. એટલે શું થાય છે કે આપણે સિસ્ટમ બનાવી રહ્યા છીએ. પેલું Node.js પર કામ કરીશ ને, એટલે ડાયરેક્ટલી ડેટા સર્વર ઉપર અપલોડ થઈ જશે, અને પછી ડાયરેક્ટ જ એ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે તમને. તો મેમ હવે આમાં કઈ રીતે કરવાનું એ થોડું આઈડિયા આપી દેજો. હા, આપી દઈશ. એ આ મેમનું પહેલા આપણે પહેલા આપણું આ આખું ક્લિયર થઈ જાય, હોમવર્ક રેડી, એટલે પછી આખી સિસ્ટમ હું સમજાવી દઉં છું. ઓકે રાઈટ? આ પહેલું મોડ્યુલ તૈયાર થઈ ગયું, વેન્ડર મોડ્યુલ. એ ક્લિયર છે ને? બસ હવે આગળ ફટાફટ જાણવા લાગીએ. સેકન્ડ છે કસ્ટમર મોડ્યુલ, રાઈટ? કસ્ટમરમાં લેવલ 1 એટલા માટે કેમ કે એને પણ મારે ઇલોબરેટ કરવું પડશે. એની મેઇન જે એક્ટિવિટી હતી, રિક્વેસ્ટ અને રિસ્પોન્સ જે બતાવ્યું હતું, તો એ શું કરશે? પહેલા પોતાને રજીસ્ટર, હવે મેં આની અંદર એડ કરી છે, એટલે તમે અમુક એક્ટિવિટી પેલામાં એડ નથી ને, એ તમે આમાંથી કરી શકો છો. રજીસ્ટર્ડ કરાવે છે તો વેન્ડર બી રજીસ્ટર કરાવશે, લોગિન કરે છે તો વેન્ડર બી લોગિન કરશે. વેન્ડર શેના માટે લોગિન કરશે? મેનેજ કરવા માટે. અને આ શેના માટે લોગિન કરશે? ચૂઝ આઇટમ ઓર ઓર્ડર મેનેજ કર, મતલબ ઓર્ડર આપવા માટે. જો ચૂઝ આઇટમ, મેનેજ પેમેન્ટ, મેં પેમેન્ટ મોડ્યુલ અહીંયા રાખ્યું છે, પણ તમારે નથી, કેમ કે પેમેન્ટમાં એ લોકો, મેં એટલા માટે અહીંયા એડ કર્યું કેમ કે પેલું મેનેજ અવેલેબલ EMI એવું મેં વાંચ્યું ક્યાંક, રાઈટ? એટલા માટે મેં અહીંયા પેમેન્ટ માટે એડ કર્યું. પણ તમે જેટલી એક્ટિવિટી એડ કરવાનો ને એટલી તમારે અહીંયા કરવાની છે એડ. અને કેન્સલ બી કરી શકે છે એટ ધ મતલબ લાસ્ટ મોમેન્ટ પર, કે મને અત્યારે નથી જોઈતું કેમ કે હું અત્યારે અવેલેબલ નથી, કાં તો મને આ પ્રોડક્ટ નથી જોઈતું,
તો કેન્સલ ઓર્ડર માટેનું પણ એક ઓપ્શન જો તમે વિચારતા હો તો રાખી શકો છો. એના સિવાયનું કોઈ કરે છે કામ કસ્ટમર? ચૂઝ આઇટમમાં એ નંબર ઓફ આઇટમ ચૂઝ કરી શકશે. પેમેન્ટ ઓપ્શનલ છે, અત્યારે પેમેન્ટ ના બનાવો તો કઈ વાંધો નથી, કેમ કે તમે અત્યારે ચૂઝ કરવાનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લિયર બેટા? હવે Yes, ma'am. જો મેઇન વસ્તુ તમે આમાં જોઈ કે કસ્ટમર એ ઓર્ડરના ટેબલ સાથે કનેક્ટેડ છે, નોટ અ આઇટમ. તો શું વેન્ડર એ ઓર્ડરના આઇટમ મતલબ ટેબલ સાથે કનેક્ટેડ નહીં હોય? હશે ને કે નહીં હોય? હશે. તો એ તો મેં બતાવ્યું Connected. કે આ ડાયાગ્રામમાં કોઈ ક્વેશ્ચન ના પૂછ્યો મને કે મેડમ અહીંયા ઓર્ડર સાથે, કેમ કે તમે જુઓ ઓર્ડર વાળા ટેબલની અંદર વેન્ડર આઈડી છે, કેમ કે ફોરેન કી હશે. સોરી ફોરેન કી થી લિંક થઈ જશે ને. ફોરેન કી થી લિંક થઈ જશે, ધેટ ઇઝ ઓકે, બટ મારે ડાયાગ્રામમાં તો બતાવવું પડે ને. ત્યાં ગાડી આ પિક્ચરમાં આવે છે કે લેવલ 2, વેન્ડર લેવલ 2, અને એની અંદર આવે છે કે ઓર્ડર ટેબલ સાથે કેવી રીતે છે. એને એક જો મેનેજ ઓર્ડર તો કરે જ છે એ, રાઈટ? કેમ કરે છે? કેમ કે હવે તમને કોઈ રિક્વેસ્ટ આવી છે એમેઝોન ઉપર, કોઈ વેન્ડરમાં આપણે રિક્વેસ્ટ મોકલી તો એને મેનેજ કરવું છે, એની પાસે ક્વોન્ટિટી છે કાં તો નથી, તો એને મેનેજ કરવું પડશે. એને નોટિફિકેશન મળી જશે કે ભાઈ આ એક વેન્ડરે તને એક મતલબ રિક્વેસ્ટ કરી છે, તો ત્યાં ગાડી એ મેનેજ કરશે એનો મતલબ ઓર્ડર, અને રેકોર્ડેડ ટોટલ ઓર્ડર એને કેટલા મળ્યા છે, એક કસ્ટમર આઈડી પરથી એને ટોટલ ઓર્ડર કેટલા મળ્યા છે ને એ મેનેજ કરશે. તો આ એ ઓર્ડર સાથે આ રીતે લિંક છે, અને એ ઓર્ડર સાથે લિંક છે ને એટલા માટે એને લેવલ 2 માં બતાવ્યું છે, પણ કસ્ટમરનું લેવલ 2 નથી. અને કસ્ટમરનું લેવલ 2 બતાવવું હોત ને, સી મેં તમને જ્યારે અહીંયા કીધું ને કે જો હું આ રિલેશનશિપ કાઢી નાખું ને, જે સિલેક્ટ વાળી, કસ્ટમર એ આઇટમ સાથે સિલેક્ટ છે, બરાબર? કેવી રીતના કે કસ્ટમર એ આઇટમ સિલેક્ટ કરે છે, પણ એ આઇટમ આઈડી ને હું અહીંયા ઓર્ડર લિસ્ટમાં નાખી દઉં ને, ઓર્ડર વાળા ટેબલમાં, પ્લીઝ ના મતલબ સાંભળજો, જો અહીંયા હું અહીંયા આઇટમ આઈડી નાખી દઉં ને તો મારે આ રિલેશનશિપની જરૂર નથી, અને કોઈ સેકન્ડ લેવલની પણ જરૂર નથી. કસ્ટમરનો 1 લેવલ ઇનફ છે અને વેન્ડરના 2 લેવલ સુધી, કેમ કે કસ્ટમરનું આપણે આઇટમ ટેબલ સાથે કોઈ રિલેશન બતાવવું જ નથી, એને ફોરેન કીથી એક્સેસ કરાવી દઈશું. ઓલ ક્લિયર? શ્યોર? કોઈ ડાઉટ મેમ? કઈ પૂછવું હોય તો મતલબ આ લોકોને કઈ કહેવું પડે. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે તો બધા મેમ થી ફેમિલિયર છો, પૂછી લો તમને કઈ પૂછવું હોય તો. મસ્ત, એકદમ મગજમાં ક્લેરિટી સાથે આવી ગયું મેમ, અને સી એકદમ ક્લિયર હા, ક્લિયર. મેં વેન્ડરને નંબર આપ્યો તો અહીંયા 1.3 સુધી મેં આપી હતી એક્ટિવિટી. જો મેં અહીંયા 1.4 અને અહીંયા 1.5 લખ્યું છે, તો તમે ક્લિયર થશો કે મારી આ 2 એક્ટિવિટી છે મારે ઓર્ડર સાથે લઈ જવાની છે, અને પેલી 4 કે 5 એક્ટિવિટી છે મારે આઇટમના ટેબલ સાથે એમાંથી ફેચ કરાવવાનું છે. તમને ક્યાંથી ડેટા એક્ઝેક્ટલી ફેચ કરવો છે ને એના માટેનું આ આજનો સેશન હતો. તમે કોડિંગ તો કરી દેશો બધું જ, પણ તમને જે ડેટા નહીં મળે ત્યારે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો, અને ત્યારે તમને મેમની જરૂર પડશે, પણ એ મેમની જરૂર થોડી ઓછી પડે ને, તમે જાતે વિચારી શકો ને બેટા, એટલા માટે આજે આપણે આ સેશન ગોઠવ્યો હતો કે તમે તમારી જાતે થોડું વિચારો કે ક્યાંથી ડેટા આવશે. તમને આવડે બધું જ છે, તમારું લોજિક પણ બધું ક્લિયર છે, પણ તમે ટેબલના નામમાં કાં તો ફેચ કરવામાં ક્યાંક ભૂલ થાય છે. ક્લિયર ને? કઈ પૂછવું છે ભાઈ? પ્રાંશુ, કરણ, દેવ, કઈ પૂછવું છે દીકરા? નો મેમ. હે? નો. યસ મેમ. સ્ટુડન્ટ્સ કઈ જ નહીં? કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં? સ્તુતિ, વિવાન, સૌમ્યા, સૌમ્યા? નહીં ma'am, no doubt. ના મેમ. ઓકે મેમ, તો આજનો સેશન ફિનિશ કરીએ. યસ. બચ્ચા પાટી 2 મિનિટ તમે રોકાજો. થેન્ક યુ મેમ, બહુ જ મસ્ત, લિટરલી
એટલે મારી પાસે બહુ ઓછો ટાઈમ હતો મેમ, અને તમારું જેટલું સિસ્ટમ હતું ને એટલા સિસ્ટમ માટે આ ઇનફ હતું. જો તમારે એને એલોબરેટ કરવું હોય તો આમાં બહુ જ બધી વસ્તુ સમજવા જેવી છે, કે એની અંદર બધું બહુ સમજવા જેવું છે. પણ એક મોડ્યુલને લઈને આપણે અંદર સમજી શકીએ. વેન્ડર હોય તો વેન્ડરને સમજી શકીએ, રાઈટ? કસ્ટમર હોય તો કસ્ટમર એકદમ નાનું મોડ્યુલ છે, કેમ કે કસ્ટમર ઓલરેડી હા એ આઇટમ્સ સિલેક્ટ કરશે અને કેન્સલ ઓર્ડર કરી શકે, ધેટ્સ ઇટ. હા, પણ વેન્ડરનું અને model પર આઇટમનું Yes. બહુ જ મોટું થઈ શકે છે હા, જો કરવું agree, હોય. agree, અને agree. ફ્યુચર એન્હાન્સમેન્ટમાં એક પેમેન્ટ વાળું. Yes. હજી આ એમનો પહેલો પ્રોજેક્ટ છે, બેઝિક આપ્યો છે એટલા માટે. અને જે સેકન્ડ પ્રોજેક્ટ આવશે ને એમને, એ કંપની પ્રોજેક્ટ છે. ઓકે, સરે કંપની સાથે ટાઈ અપ કરી દીધું છે અને એ કંપનીનો જ પ્રોજેક્ટ આ બધાને આપવાનો છે. અને એમાં એ લોકો ગ્રુપમાં થશે, ઓકે, રાઈટ? ડન. સો થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મેમ. બાય Bye, સ્ટુડન્ટ્સ. પછી Bye, આ ma'am. તમે કરીશું 2-5 હા. મિનિટ. ઓકે, સૌમ્યા સ્તુતિ વિડીયો ઓન કરો દીકરા જલ્દીથી. सौम्या, विवान, देव, प्रांशु, करण, अभी ये बताओ कि क्या आपको पता चला प्रॉपरली? યસ મેમ. हाँ मैम. Yes, ma'am. स्टेप नंबर 1, अब मैं पूरा गेम प्लान क्लियर कर रही हूँ कि अब हम कैसे जाएंगे. सो आप सबको पता है कि हम पाइथन में मॉड्यूल्स बनाते हैं, राइट? क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसे दूसरी फाइल में यूज कर सके, राइट? मॉड्यूल इज व्हाट? इट्स अ पीवाई फाइल, राइट? जिसमें ग्रुप ऑफ फंक्शंस रहेंगे. आप क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, अब आपको वो आता है, राइट? सो सबसे पहले जो हम मॉड्यूल बनाएंगे, कोडिंग पार्ट. दिस इज ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो हमें भारत सर ने दिया था, क्योंकि वो हमें आईआईटी के आईआईटी मद्रास के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मिला था, राइट? सो वो हमने डायरेक्टली आपको दिया, बट आपके सिलेबस में ई कॉमर्स मतलब कि वो बूटस्ट्रैप नहीं है पूरा, राइट? नोड जेएस, एंगुलर जेएस नहीं है. हमारा मेन फोकस सिर्फ पाइथन कोडिंग है. सो अब हम उस पे रहेंगे. फ्रंट एंड की डिजाइनिंग की चिंता अब हम नहीं करेंगे, राइट? बट हाँ, यू नो टीके इंटर वेरी वेल. सो हम लॉगिन पेज बनाएंगे सबसे पहले. अब लॉगिन में हम 4 ऑप्शन देंगे. प्लीज अब मेरे साथ ना सारे बच्चे, यूजर आईडी आपको और पासवर्ड, नीचे व्हाट दे आर, कि दे आर कस्टमर, वेंडर या जो भी हो, ड्रॉप डाउन या लिस्ट में आप डाल सकते हैं. जो भी सिलेक्ट करें हम उसे रजिस्टर करेंगे. यस और नो? क्लियर? મેમ એના કરતા એક બેટર આઈડિયા હતો મારી જોડે प्लीज शेयर કે प्लीज. મેમ આ કસ્ટમર ને વેન્ડર નું તો ટેબલ અલગ રહેશે જ, બરાબર? હવે આપણે એક નવું ટેબલ બનાવીએ જેમાં ઈમેલ આઈડી અને ટાઈપ રહેશે, વેન્ડર કે કસ્ટમર, બરાબર? હવે એ લોગિન કરે એટલે એનું ઈમેલ છે ને આપણે ફેચ કરાવડાવીશું. અને ઇફ એ ટાઈપ વેન્ડર હશે તો ડાયરેક્ટ વેન્ડરની સ્ક્રીન જ ડિસ્પ્લે થશે, અને કસ્ટમર હશે તો કસ્ટમરની સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે થશે. તો આપણે આ મૂકવાની જરૂર નથી. ओके, सो आईडी पासवर्ड से हम डायरेक्टली, पर सबसे पहले उसे रजिस्टर तो करना पड़ेगा. હા, રજીસ્ટર કર્યા પછીની વાત છે. रजिस्टर करे પછી. ओके डन. सो सौम्या, विवान, प्रांशु, करण, स्तुति, क्या ये समझ आया उसने क्या बोला? सबसे पहली स्क्रीन तो रजिस्ट्रेशन होगी, राइट? सबसे पहली स्क्रीन पे 2 बटन होंगे, रजिस्टर या लॉगिन. हाँ या ना? हाँ मैम. स्तुति क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. हाँ. सो नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली. उसके बाद देव ने एक आसान रास्ता दिया कि सबको डिस्क्लोज नहीं करना है, तो जैसे ईमेल आईडी वो फैच करेंगे, राइट? सो देख लेंगे कि भाई कौन है वो ईमेल आईडी में, एग्जिस्टिंग बंदा कौन है, वेंडर है. सो वेंडर वाला पेज खुल जाएगा. इफ इट इज कस्टमर तो कस्टमर वाले पेज पे चले जाएंगे. परफेक्ट. क्या है कैसे, मतलब वो फंक्शन ही कॉल करना है वो आप सीखेंगे. अभी आप कोडिंग पे फोकस कीजिए, राइट? सो ये प्रोजेक्ट इसीलिए कि आप सारे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर दे हमारे साथ. ओके, ना वेंडर पे चले गए तो आपके पास लिस्ट ऑफ जो भी है कि यू कैन क्रिएट, मतलब ऐड न्यू प्रोडक्ट, डिलीट द प्रोडक्ट, मतलब अपडेट, मतलब अगर कोई प्राइस चेंज करनी है, किसी के अपडेशन तो आएंगे ना, प्राइस वेरिएशन, तो आप प्राइस चेंज कर सकते हैं, या आपको डिस्काउंट ऑफर करना है तो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, राइट? तो वो सारी चीजें कौन करेगा? वेंडर. और उसका डेटा डायरेक्टली चला जाएगा आइटम टेबल में, स्टोर हो जाएगा, राइट? वो रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ या ना? जो हमने अभी देख लिया, राइट? Yes, ma'am. हाँ यहाँ मैम. तक क्लियर है?
सौम्या Yes. यहाँ तक Yes, ma'am. Yes. यस सर। सेम वे फिर अब जब मैं कस्टमर हूँ तो मैं कस्टमर पे आती हूँ तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर टेबल लिंक होगा, क्योंकि मैं तो दो ही काम कर सकती हूँ, या तो मैं ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ या तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। सो वो डेटा हमारा होगा ऑर्डर के साथ। तो अभी यहाँ तक ही रहते हैं, यहाँ तक ही। फिर जो हमें तीसरा ऑप्शन दिया है ना वेंडर एंड ऑर्डर का, वो हम बाद में करेंगे। इनिशियली पहले लॉगिन या रजिस्टर, उसके बाद क्या करेंगे, आपको कोडिंग में क्या शुरू करना है, तो वेंडर मॉड्यूल, दैट्स एक मॉड्यूल बनाओ, फिर दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वेंडर में बहुत सारा काम है, वो खुद एडमिन है, राइट। वेंडर मतलब वो खुद है, वो उसके पास बहुत सारी चीजें खुद की मैन्युफैक्चरिंग की है। सो वेंडर क्या करेगा, जो 4-5 ऑप्शंस है जो हमने दिए हैं डेटा बैंक में, प्रॉब्लम बैंक में, तो उसमें से हम वो फंक्शन क्रिएट करेंगे और वो पीवाई फाइल बना के छोड़ देंगे, दैट्स इट। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। राइट। Yes, और ma'am. सर ने ट्यूसडे का प्लान अरेंज किया है मॉर्निंग का, कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास हम देंगे ट्यूसडे 11:30, राइट, आप और प्रांशु दोनों को, जिसमें आपको एसक्यूएल वाला पोर्शन हम Done. अच्छे से सिखाएंगे, राइट। सो प्रांशु प्लीज 11:30 ट्यूसडे को अगर हो सके तो लॉग इन कर देना, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली करने वाली हूँ वो वाली क्लास, राइट बेटा प्रांशु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I just have a school at that time. I know you have a school, but please थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा, because of SQL, okay? Done. So यहाँ तक done. किसी को कुछ पूछना है? सौम्या, स्तुति, कुछ पूछना है बेटा? नहीं, ma'am. विवान, actually this is damn easy. ये easy हो जाए, इसकी ये फर्स्ट प्रोसेस है करण। आज नहीं, आप गेम डेवलपमेंट में जाएंगे तो ये प्रोसेस तो हर जगह पे रहेगी, राइट। कोडिंग का पार्ट तो हमारा बहुत ही आराम से आएगा, आगे जो है वो पूरा रफ वर्क है, ये हमारा पेपर वर्क है, दिस इज अवर पेपर वर्क। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपकी कोडिंग उतनी इजी हो जाएगी, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक क्लैरिटी है सबकी, Yes, ma'am. राइट। ओके, तो फिर अब आप कोडिंग करना शुरू करेंगे, वेंडर की फाइल रेडी करेंगे, फंक्शंस रेडी करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपको लेना है वो। आपको मेनूज आते हैं, कहते हैं प्रेस 1 2 3 4। એસક્યુએલ થી જ ને यस करण, બધું એસક્યુએલ થી જ ને મેમ ડેટાબેઝ માં 110% SQL, ઓકે that is the ડન permanent storage, ઓકે right? ઓકે So please, और प्लीज पाइथन से ही टेबल क्रिएट करने हैं, ताकि कंपनी में जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। આપણે કર્યું એમ ને ये હા हमने થઈ कर જશે दिया, राइट, डन। SQL यूज करके पाइथन में जैसे हम कर रहे थे कोड, SQL की कमांड्स और क्वेरीज हम लोग पाइथन में कोड कर रहे थे, वैसे, राइट? लाइब्रेरी मैनेजमेंट ने कैसे किया था, वैसे ही हाँ, पूरा, हाँ, થઈ मतलब જશે स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम में कुछ हो या ना हो, आपका डेटाबेस भी क्रिएट होगा, टेबल भी क्रिएट होगा। एक बार टेबल क्रिएट हो गया तो दूसरी बार नहीं ही होगा। મેઇન ફાઇલ બનાવીને ઇમ્પોર્ટ કરવાની બધી यस, ओके, ओके, वेंडर चलो। फाइल तो फिर हम तो एक ही फाइल बनाएंगे, main.py, और हाँ, उसमें हाँ, इन डन, सबको इंपोर्ट એલસી करते ફેલસી हैं, કરીને हाँ राइट। विवान समझ आ रहा है? main.py में तो सिर्फ 4 या 5 लाइन ही होगी, बाकी सब कुछ आप इंपोर्ट करेंगे, वेंडर, Yes, ma'am. ऑर्डर्स एंड कस्टमर। ओके, तो अभी एक ही फाइल बनानी है, vendor.py। ट्यूसडे मिलेंगे, vendor.py का काम कंप्लीट हुआ है जिनका भी, वो हम चेक कर लेंगे, राइट। खाली वेंडर हाँ चलो डन एक वेंडर रेडी हो जाएगा ना करण आपका, तो फिर आप मुझे सामने से कॉल करेंगे, मैम आप बोलो मैं अब क्या शुरू करूं, फिर अब तो पूरा ट्रैक आपके सामने है ही, राइट। Ma'am, for the SQL class, can we keep it at 12:30? बिकॉज मुझे 1.5 आवर चाहिए, सो 11:30 to 1 पूरा, क्योंकि मैं 1 बजे फिर मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट रहती है, 1 to 3:30 I have certain fixed schedule, that's why, so 11:30 to 1.5 hour I need for SQL class, okay? नो वरी प्रांशु, आप 12:30 लॉग इन करना, मैं रिकॉर्डिंग तो करने वाली ही हूँ। Okay then, thank you so much everyone, enjoy.